response for a webinar. Friends, myself CA Pavan Sada, I welcome you all for this interactive webinar on coming out of comfort zone, especially for all professional students, chartered accountant students, CS students, and it's our privilege to have none other than CA Sandeep Jotwani sir. I would say Sandeep Bhaiya for this webinar. Friends, अब अगर आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए या आप लोगों को सही डायरेक्शन देने के लिए कोई एक पर्सन को अगर लाना होगा, सो नन बेटर देन संदीप सर, because he himself has been a wonderful professional, an amazing human being. एंड मैं खुद एक्चुअली संदीप सर का पार्टनर हूँ, एंड मैं पार्टनर से ज़्यादा अपने आप को उनका भाई मानता हूँ, बिकॉज संदीप भैया हैज़ बीन देयर एज माय मेंटोर राइट सिंस आई हैव बीन अ सीए स्टूडेंट, and more than my CA journey, he has mentored me throughout in making so many various life decisions, career decisions as well. So Sandeep bhaiya, it's not the first time that you are coming to the platform of CAPS as a speaker or as a guest. In fact, we are a part of the family. आप तो मेरे पहले से कैप्स के स्टूडेंट थे, और फिर आप जब तो मेरा स्टैंडर्ड 10th नहीं हुआ था तब तक आपका सीए खत्म हो गया था. सो आप तो बहुत ज़्यादा सीनियर हो, लेकिन आप ऐसा फील नहीं कराते हो. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. एंड फ्रेंड्स, मेरी जस्ट संदीप सर से एक दिन कैजुअल चैटिंग चल रही थी. अभी तो लॉकडाउन हो गया है, सो हम लोग अपने अपने घर पे थे, कैजुअल चैटिंग चल रही थी. सो Sandeep sir himself suggested that right now it is the most important for students to know that how to come out of the comfort zone, जो situation है. And I knew that if he is ready to address to our students, there is nothing like it. And in spite of your busy schedule, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये सेशन आज अटेंड कर रहे हैं, आई नो योर शेड्यूल्स. सुबह जो आप लोगों की 7, 8, 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है नॉन स्टॉप, सिर्फ 15-15 मिनट का ब्रेक रहता है, बैक टू बैक. संदीप भैया, दे आर ऑलरेडी प्रोबेबली आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, एंड नाउ दे विल गेट अ मच नीडेड पुश दैट दे नीड फॉर दिस वीकेंड. एंड वीकेंड पर सीखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, बाकी लोग एंटरटेनमेंट में विश्वास रखते हैं. सो वी हैव 150 पार्टिसिपेंट्स हियर who want to learn and grow. So this whole webinar is for that purpose. Friends, we are also privileged that in our DJ Sharma's CAPS team, we have another young chartered accountant with us, CA Pulkit Batra, who has been one of my students as well, and he is also one of our faculties, and he has been working at the back end very much for the success of this webinar. So we have invited Pulkit sir to give an introduction of our esteemed speaker Sandeep sir, and then we will proceed with the webinar. Over to you, Pulkit sir. Thank you so much, sir. Hello. Yes. Thank you so much, sir. Thank you for giving me this opportunity. And it is my humble privilege to introduce today's speaker, CA Sandeep Jotwani, sir. CA Sandeep Jotwani, sir, has been academically excellent throughout his career. He has graduated from Hislop Commerce College, Nagpur, and he has also done chartered accountancy. Along with that, CA Sandeep Jotwani, sir, has also done concurrent audit course, alternate dispute resolution courses, and fraud accounting and fraud prevention courses. CA Sandeep Jotwani, sir, is founder partner of Messel Span & Co. And sir has been working in fields of taxation, finance, policy making, and internal controls. Sir have given multiple lectures at NADT Academy. Along with that, sir has appeared in various platforms of reputed news and radio channels. Sir has been awarded Orator of the Town in English category in year 2005 and in Hindi category in 2006. Sir has been very active in his student life also. He has been participating in allocation contests and quiz contests and winning ranks for our Western India region. Sir has acted as chairman of Nagpur branch of ICASA for year 2013 and 2014, and recently sir were branch chairman of Nagpur branch ICAI, where ICAI branch won Best Branch Award at a national level. So we all know what a prestigious and amazing faculty and orator we are going to witness today. Thank you. It was my humble opportunity that I got
to introduce such an amazing personality. Thank you so much, sir. Over to you. Over to you, Sandeep sir. ये students 150 plus students सब आपके तरफ समर्पित हैं. Yes, thank you, Pawan. Thank you, Pulkit. Pawan rightly said that he is more a brother, and then again a chartered accountant, a faculty, a mentor, and so many things. And Pawan himself has mentored so many students, and at times he also teaches us about so many aspects in which he masters. So I'm thankful to CAPS for giving me this opportunity to interact with this 150 plus future professionals, future chartered accountants, future company secretaries, and that too on a topic which is a bit different. Comfort zone. So comfort zone, what exactly it is? A zone where we are actually comfortable. जहाँ में रहना अच्छा लगता है, जहाँ हम अच्छे से रहते हैं, enjoy करते हैं, और हम आज बात कर रहे हैं उस जोन से बाहर आने की. We are talking about coming out of that zone. बट थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम अच्छा खासा जी रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, एक जोन में हैं, और आज हम बात करने वाले हैं उस जोन से बाहर आने की. थोड़ा सा अजीब लगता है. उतना ही अजीब लगता है जैसे कि कह रहे हैं ना कि 2020 में सबसे ज्यादा नेगेटिव कोई शब्द है तो वो है पॉजिटिव. जैसा वो अजीब लगता है वैसे ये अजीब लग रहा है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात कर रहे हैं. फ्रेंड्स, आई विल बी पुटिंग सम क्वेश्चंस, आई विल बी पुटिंग सम सिनेरियोस, and you yourself can understand exactly why we are talking about this topic, why we are discussing this topic. And believe me, in time to come you'll realize the importance of why this topic was relevant for all of you, why we thought that let's discuss with the future generation about this comfort zone so that they should have something in their mind. And the most important aspect is कि जैसे पवन सर ने मुझे बताया कि हर वर्ग के आज लोग हैं, आज फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स भी हैं, आज इंटर वाले स्टूडेंट्स भी हैं, फाइनल वाले भी हैं. तो अच्छा रहेगा, हर तबके के लोग जब साथ में होते हैं तो अच्छा लगता है. Friends, again I'll be continuing with my discussion, and later on we'll be having question and answer also. So in case you have anything in mind, just keep it with you. Later on we'll have a full-fledged question and answer session, and unless I answer your question I'll not be going. Believe me that. Well, CAPS is always home for me, because मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ में पहली बार अगर मैंने स्टेज को फेस किया था, आपने मेरा भी इंट्रोडक्शन सुना, पुलकित ने बहुत अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन दिया. लाइफ में पहली बार अगर मैंने स्टेज को फेस किया था तो वो था कैप्स का प्रोग्राम, जो कि हम हर साल टीचर्स डे पे सेलिब्रेट करते हैं. वो पहला प्रोग्राम था जब मैंने स्टेज से देखा था कि ऑडियंस दिखती कैसी है. तब तक कभी मैंने स्टेज से कुछ देखा ही नहीं था. और उसके बाद ऑलमोस्ट जितने साल कैप्स में रहा, जैसे जल्दी से ये बन गया था, मैं ऐसा मत सोचिए कि बहुत साल मैं कैप्स में था. जब तक मैं था तब तक के मैं हर साल टीचर्स डे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता था, एंजॉय करता था. उसके बाद भी मुझे मौका मिला आप सबसे रूबरू होने का, समय समय पे पवन सर ने इनवाइट किया और अलग अलग टॉपिक्स पे बात करने का मौका मिला, ब्रांच में, कैप्स में. आज फिर आप सबके बीच हूँ एक टॉपिक लेकर, कंफर्ट जोन, कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन. लेट्स सी, I'll just share PPT so that थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है PPT जब होता है तो. Yes, as you can see that we are discussing that the life starts beyond your comfort zone. What I mean to say that if you really want to enjoy your life, if you really want to start your journey from a professional to a successful professional, you will have to come out of that comfort zone. And believe me, it's a fact that life really starts the time you decide to come out of that comfort zone and move ahead. Best part is you all have already taken that step. Now how? Now हम सब 10th पास करके, 12th पास करके हमने ये डिसाइड किया कि हम एक प्रोफेशनल कोर्स को अडॉप्ट करेंगे, हम एक प्रोफेशनल कोर्स में आगे बढ़ेंगे. आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे. ऑप्शंस ये भी थे कि सिंपल ग्रेजुएशन कर लो, बहुत सारे कोर्सेज आज मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपने चुना कि नहीं, मैं एक प्रोफेशनल कोर्स करूंगा. जिस प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए काफी सारी मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, उसके बावजूद आपने कहा नहीं मैं ये प्रोफेशनल कोर्स करूंगा. द टाइम यू हैव टेकन दिस डिसीजन, already you have decided, you have already taken a step beyond that comfort zone.
So I must compliment you for that, that you have taken one of the important decision of your life, and this decision will again help you in your life to come. Now, जब छोटे थे हम लोग तो कई सारे सपने देखते थे कि बहुत सारी चीजें लाइफ में करेंगे. जब छोटे थे तो बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में होते थे. क्लास चेंज होती थी, फ्रेंड्स चेंज होते थे, टीचर्स चेंज होती थी, और हम इस चीज को पॉजिटिवली एंजॉय करते थे. अच्छा लगता था नई टीचर्स मिलना, नए फ्रेंड्स मिलना, नई क्लासेस में जाना. जैसे जैसे चीजें चेंज होती थी हम उसे एंजॉय करते थे. आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, थोड़ा सा एनालाइज करिए अपनी सिचुएशन को कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, अगर चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं तो शायद हम उन चेंजेस को उतने अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाते, उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते जितना पहले होता. ठीक है, अभी जो आप स्टेज में हो, इस स्टेज में एक बार का आप चेंज अडॉप्ट कर भी लोगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी जो हैबिट है, धीरे धीरे आप चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करोगे, आप चेंजेस से भागोगे. यू विल बी रिलक्टेंट टू चेंज. सिंपल स्टेप. आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं. आप कोशिश करिएगा, उनसे सजेस्ट करिएगा कि आप ये चीज ऐसे क्यों करते हो, ऐसे क्यों नहीं करते. कभी अपने फादर को कुछ सजेस्ट करिए, अपनी मदर को कुछ सजेस्ट करिए. देखिएगा वो शायद उस चेंज को इतने इजीली अडॉप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ये चीज सबके साथ होती है. दिन ब दिन हम एक ऐसे जोन में आ जाते हैं, हम अपने आप को एक ऐसे जोन में बांध देते हैं कि उस जोन से बाहर आने के लिए हम रेडी नहीं होते. शायद यही हम कंफर्ट जोन इसे कहते हैं. और आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड ये कंफर्ट जोन क्या होता है, हम इससे बाहर क्यों आए और कैसे आए. धीरे धीरे आप भी सपने देखोगे, कई सारे सपने देखोगे. हो सकता है आपको रियलाइज होना चालू हो जाए कि ये सपने शायद प्रैक्टिकल नहीं है. आप सोचोगे आज तो आप सपने देख रहे हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लगेगा ये सपने प्रैक्टिकल नहीं है. ये मैं आपके साथ नहीं कह रहा हूं, ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि एक स्टेज तक हम बहुत सारे सपने देखते हैं, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बट एट वन टाइम वी रियलाइज दैट नो, all these dreams are not feasible, these are not practical, it is not possible for us to move with these dreams. And believe me friends, यहीं से हम अपने ड्रीम्स की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ ऑब्स्टिकल क्रिएट करना चालू कर देते हैं. A simple answer, a simple question to all of you. We all have decided to become a chartered accountant. We all have decided to become a company secretary. आप इस फील्ड में आए, वो क्यों आए? Are you really happy with your decision or just comfortable with your decision? I'm not asking answer to this question. I'm asking you to think and answer to yourself whether you are really happy with this decision or just comfortable with your decision. Now, हम यहाँ क्यों आए? हम इस फील्ड में क्यों आए? शायद हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा इस फील्ड में आने के लिए, शायद हमारे फ्रेंड्स कर रहे थे इसलिए हम भी कर रहे हैं, शायद हमने एक सेमिनार अटेंड कर लिया था, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने में पड़ी, हम इसलिए फील्ड में आ गए. ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, हम कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं, तो हम ये क्यों बनने जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा. अब मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूं. When I was a school student, I was not a very bright student, ना, just average student. कभी मैंने बहुत ज्यादा सपने नहीं देखा, कभी बहुत ज्यादा मैंने बड़े एम नहीं रखा लाइफ में. सिंपल पढ़ाई कर लो, फर्स्ट डिवीजन में आ जाओ, इतना अल्टीमेट एजेंडा अपना हुआ करता था. 10th क्लास में मेरे 67% मार्क्स आए थे. I was happy, at least I was in first division. My teacher used to say that I am a bright student, मैं मेहनत नहीं करता, मैं करना चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर ठीक है, बिजनेस करना था. टिपिकल बिजनेस मेंटालिटी मेरी थी. मुझे लगता था बिजनेस जो है फैमिली का, उसे आगे बढ़ाऊंगा. शू बिजनेस में जाने की इच्छा थी, उससे रिलेटेड बहुत सारे ख्वाब मेरे दिमाग में थे जब मैं स्कूल में था. फिर जब स्कूल खत्म हुआ तो ऐसा लगा पता नहीं मैं कहाँ से आज़ाद हुआ हूँ. और जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया तो ड्रीम था एक अच्छा सा कॉलेज हो जहाँ मैं फुल कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँ. मैं रोज कॉलेज जाता था, समय पे जाता था, समय पे घर आता था. भले लेक्चर्स में अटेंड नहीं करता था, शायद 11th स्टैंडर्ड में मैंने 2 या 3 लेक्चर अटेंड किए होंगे, लेकिन मैं रोज कॉलेज गया. तो मैंने फुल कॉलेज लाइफ अपनी एंजॉय की, फुल मस्ती की. एक ऐसा एटमॉस्फेयर में रहा जो एटमॉस्फेयर का सपना हम सब देखते हैं.
मैंने रियलाइज किया कि अपनी स्कूल लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो, मैंने जो भी डिसीजंस लिए वो ऐसे डिसीजन लिए जो कहीं ना कहीं मुझे कहीं बांध के रखते थे, कंफर्ट जोन में रखते थे। मैं उस जोन से बाहर आना नहीं चाहता था, मैं अपने आप को चैलेंज नहीं करना चाहता था, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, मैं डरता था। और मैंने जो अपने सामने टारगेट रखा था, बहुत ही इजी टारगेट था, मुझे अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना था। उससे आगे मैंने कभी सोचा नहीं। टीचर्स को एक्सपेक्टेशन थी, मैं कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन थी, मैं कर सकता हूं। अल्टीमेटली मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। In 12th standard, I decided, okay, let's do something interesting. Let's take a challenge. थोड़ा सा मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं. In 12th class, I started studying seriously. I took efforts, and believe me, friends, I lost my merit just by 4 marks. Okay, I lost my merit, but I was happy that, okay, I'm able to do something. I'm able to justify my efforts. I'm able to answer those people who had faith in me that I can do something in my life. 12th में वो जब मार्क्स आए, जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का लेटर आया कि हाँ मेरिट में आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं या हमको स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत अच्छा लगा देख के, सुन के। ऐसा लगा चलो चैलेंज लिया था, इस चैलेंज को थोड़ा और बड़ा करते हैं। सडनली आई डिसाइडेड कि लेट्स गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट्स डू सीए। द टाइम आई डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर सीए, बहुत सारे अनवांटेड गेस्ट आ गए, बहुत सारे अनवांटेड सजेशन आ गए, बहुत सारे कंसल्टेंट्स मेरे आसपास मंडराने लगे, जो आपके सामने भी आएंगे और आपके सामने या फिर आ भी चुके होंगे कि पता है सीए क्या होता है, पता है सीए में कितना % रिजल्ट आता है, पता है कितने लोग फेल होते हैं, पता है वो इंसान जो है वो फेल हो गया, पता है उसने सीए छोड़ दिया, उसकी बेटे ने छोड़ दिया, उसकी बेटी ने छोड़ दिया। इतने सारे सवाल मेरे सामने आ गए। लोगों ने कहा तुझे पता भी नहीं है तू किस फील्ड में जा रहा है और तू एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बिलीव मी फ्रेंड्स, मैंने उन सबको कभी आंसर नहीं दिया। उन लोगों ने जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि मैं सीए क्यों करने जा रहा हूं, मैं एक ऐसे प्रोफेशन में आ रहा हूं जो कि बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, लेकिन मैंने उन्हें कभी आंसर नहीं दिया, मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि कभी पलट के ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना। जिस दिन आप सीए बन जाओगे, जिस दिन आप सीएस बन जाओगे, जिस दिन आपके नाम के सामने वो 2 प्रीफिक्स लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली इन सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो सारे सवाल अपने आप बंद हो जाएंगे। आपसे बस ये एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। इन सारे सवालों को आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा और आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप जो एक जोन में हो वो जोन में क्यों हो और उस जोन से आपको आगे कहां बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। तो आई ऑलरेडी रेस्ड, आर यू रियली हैप्पी or really comfortably? You have to think about it. Few days back, I got a call from one of my relative. She said, "Sir, I've joined so and so academy now for CA intermediate. Earlier, I was with so and so academy for CA foundation. CA foundation में जब मैं थी तो मैं बहुत enjoy करती थी, enjoy करते करते पढ़ाई करती थी, एक अच्छा माहौल था, मेरे फ्रेंड्स थे, पास भी हो गई, सीए फाउंडेशन पास भी हो गई। सीए इंटर में आपने कहा नहीं एकेडमी नहीं, एकेडमी चाहिए, मैं उस एकेडमी में आ गई, पर यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पढ़ंतु वाला एटमॉस्फेयर है। यहाँ बहुत ही मस्ती नहीं होती, यहाँ पढ़ाई ज्यादा होती है। 10 मिनट की ब्रेक मिलती है, वहाँ आधा घंटे की मिलती थी, यहाँ 10 मिनट की ब्रेक 8 मिनट में खत्म हो जाती है। 8 मिनट में भी बाकी के स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये सवाल था। मुझे लग रहा है कि मैं कहां आ गई हूं, मुझे लग रहा है कि मैं कहां बंद गई हूं। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ कंफर्टेबल जोन। शी वॉज यूज्ड टू दैट कंफर्ट जोन। शी वॉज इन सीए फाउंडेशन in a zone where she was comfortable with friends in an atmosphere which was very, it was very light atmosphere. Somehow she managed to clear with a good marks in CA foundation. Later on, because CA intermediate is a bit difficult, then CA foundation, I suggested, okay, go with this academy. When she came in that academy, she was not comfortable because of the atmosphere. थोड़ा पढ़ंतु माहौल देख के उसे घबराहट होने लगी. And believe me, few days back she called me and she thanked me. Thank you for suggesting me this academy. Slowly, she came out of that comfort zone. Slowly, she realized that okay, CA foundation में वो चल गया, लेकिन CA intermediate में मुझे अपना लक्ष्य
आगे देखते हुए अपने अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, और अगर मैं चेंज नहीं करूंगी तो उसका खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा. And believe me, friend, in CA final, it's going to be more tough. Again, you will have to move ahead out of your comfort zone. This is a small practical story where you can connect yourself and realize how this comfort zone is important for all of us and why we have to move out of it. Friends, what is your aim in life? कभी इसके बारे में हमने सोचा है? अगर मैं आज करीब 150 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद हैं, अगर मैं इन 150 लोगों से पूछूं कि आपका लाइफ में एम क्या है, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा कि मुझे सीए बनना है. मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा मुझे सीएस बनना है. दोस्तों, आपकी लाइफ का एम सीए या सीएस बनना नहीं है. आपकी लाइफ का एम कुछ और है. आप सोचिए क्या? आपकी जिंदगी में सीए बनना या सीएस बनना ये लाइफ का अंतिम पड़ाव नहीं है. ये आपकी लाइफ की जर्नी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप, बट इट्स नॉट द अल्टीमेट स्टेप. जिस दिन सीए बन जाओगे, जिस दिन सीएस बन जाओगे, लाइफ खत्म नहीं होने वाली. उसके बाद तो लाइफ की शुरुआत होने वाली है. आप सीए बनने के बाद रियल जिंदगी जीना शुरू करोगे. वहां से सीए से सक्सेसफुल सीए की जर्नी शुरू होगी. सीए से सक्सेसफुल सीएस बनने की जर्नी शुरू होगी. आपकी लाइफ का अल्टीमेट एजेंडा सीए या सीएस बनना नहीं है. आपकी लाइफ के एजेंडा बहुत सारे हैं. आपकी लाइफ के एम बहुत सारे हैं. हो सकता है आपको कई सारे लोगों को पढ़ाना है, कई सारे लोगों को सीए बनाना है, जैसे पवन सर ने चुना. कई सारे लोगों को एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, बड़ा बंगला बनाना है, गाड़ियां लेनी है. बहुत सारे सबके ड्रीम्स हैं. आपकी फैमिली के आपसे ड्रीम है. उन सब ड्रीम्स को पूरा करना है. आप ये तय करेंगे कि आपके लाइफ में मकसद क्या है, लेकिन ये कतई मत कहना कि मेरा एजेंडा सीए या सीएस बनना है. आपकी जर्नी तो शुरू होगी वहां से, वहां खत्म नहीं होने वाली. अगर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं कि भाई, अगर आपको कोई किताब खरीदनी हो तो किताब कैसे खरीदते हो, कैसे सिलेक्ट करते हो कि हम कौन सी बुक चूज करें? अफसोस, हम जब किताब चूज करते हैं तो किताब को पहले पन्ने से चूज नहीं करते, आखिरी पन्ने से चूज करते हैं. जब मैं कहता हूं आखिरी पन्ने से चूज करते, तो हम ये देखते हैं कि भाई इस किताब में पन्ने कितने. The ultimate thing which we choose, the ultimate book which we choose, it is decided on the basis of number of pages which is inside that. जितनी बुक छोटी होगी उतना हम कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि इतने कम एफर्ट्स लगे. शायद यही कारण है कि हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं नोट्स के ऊपर. नोट्स के आगे हमें कोई दुनिया ही नजर नहीं आती. इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि नोट्स आपको सीए तो बना देंगे, लेकिन आप याद रखिए, सीए बनने के बाद भी एक लाइफ है. क्या ये नोट्स आपको तब भी काम आएंगे? क्या तब भी अगर आपके बॉस या आपको कोई डिपार्टमेंट में पूछे कि आपने ये इंटरप्रिटेशन किया है, ये इंटरप्रिटेशन का आधार क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन, विल यू टेक दोस नोट्स अलॉन्ग विद यू कि हां सर, ये नोट्स में ऐसा ऐसा लिखा है जिससे पढ़कर मैं सीए बनाऊं. उस समय आपको वो किताब दिखानी होगी जिस किताब को आप सामने रख सकते हो कि हाँ, ये इस किताब में यहां लिखा है. और वो किताब होगी, वो बेयर एक्ट होगी. नाउ व्हाट इज बेयर एक्ट? आपको एक बताऊं बात कि बहुत सारे सीए इंटर और सीए फाइनल के भी स्टूडेंट्स यहां पर हैं. कई सारे लोगों को बेयर एक्ट क्या होती है पता नहीं होगा. बेयर एक्ट यानी बेयर एक्ट, जो कानून बोलता है वो एक्ट में लिखा हुआ है लीगल लैंग्वेज में. उस लीगल लैंग्वेज को इंटरप्रीट करके सिंपल भाषा में आपको नोट्स बना करके सर ने दिए. लेकिन वो नोट्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको वो बेयर एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो बेयर एक्ट क्या बोलती है. भाई, उसे पढ़ने की कोशिश तो करो. एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में, मेरे असिस्ट जो मुझे असिस्ट करते थे, बोले सर अभी ऑडिट सीजन आ रहा है, मैं चाहता हूं अपने आप को मैं तैयार करूं, तो आप मुझे कोई अच्छी सी बुक बताइए जिसे पढ़कर मैं थोड़ा बहुत रिफ्रेश कर लूं इनकम टैक्स को. तो मैंने कहा हाँ, इतनी सारी बुक्स हैं मेरे केबिन में, आप कोई भी चूज कर लीजिए. मैंने एक प्रैक्टिस की उन्हें बुक दी. उसमें करीब 1600 पन्ने थे. उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, ये इतनी मोटी बुक दीजिए, आप वो वाली बुक दे दीजिए. पतली सी बुक थी. मैंने कहा भाई, ये बेयर एक्ट है,
ये बैरक से आपको कुछ समझना नहीं है। आपको अगर समझना है तो आपको बुक पढ़नी होगी। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, मैं आपको 2 पन्ने में नोट्स बना करके दे दूं बिजनेस एंड प्रोफेशन के, आप पढ़ पाओगे, समझ जाओगे पूरा बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको जब तक मैं कोई भी चीज डिटेल में नहीं समझाऊंगा आप नहीं समझ पाओगे। जितने ज्यादा पेजेस होंगे उतना ज्यादा वो चीज डिटेल में एक्सप्लेन होगी, आपको अलग अलग इंटरप्रिटेशन बताए होंगे, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ बताए होंगे, ताकि वो इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आपको वो याद नहीं करने वो 1600 पन्ने, लेकिन हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है नहीं भाई हम इतने पन्ने पढ़ ही नहीं सकते। हमने अपने आप को एक ऐसे जोन में डाल रखा है कि हम लोग पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं पर्टिकुलर नोट्स पे, उस नोट से बाहर आना हम चाहते ही नहीं। अगर हम नहीं चाहते तो आप याद रखिए सीए या सीएस बनने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा तब उतनी डिफिकल्टी होने वाली है आपको जितनी बहुत सारे लोगों को होती है। व्हाई वी जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट? हम कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? मैं कई बार आर्टिकल से जब इंटरेक्ट करता हूं कि भाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, सर हमारी ये सब्जेक्ट की कोचिंग हो चुकी है, ये कोचिंग बची हुई है, हाँ इतने महीने के आप लीव दे दीजिए मैं इतनी कोचिंग कर लूंगा। बात ऐसी करते हैं ये कोचिंग ना हुआ ये कोई दवाई हुई। क्या मैंने ऑडिट की क्लास कर ली, मैंने ऑडिट की गोली खा ली है, अब बस मुझे लॉ की गोली खानी बची है वो मैं खा लूंगा। सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। आपके अपने एफर्ट्स क्या थे? आपने कोचिंग सुबह से लेकर रात तक ज्वाइन की, शायद ये साइकोलॉजिकल एक फीलिंग आ गई आपको कि हाँ मेरी पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम के पहले बुक खोलोगे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं फ्रेश पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कोचिंग में क्या हुआ था। अगर आप थोड़ा सा रियलाइज करो तो आप कनेक्ट कर सकते हो ये एपिसोड आपके साथ भी हुआ होगा। कोचिंग हो चुकी है, नोट्स मेरे सामने हैं, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो मुझे कुछ भी याद नहीं कि कोचिंग में क्या हुआ था, मुझे अब फ्रेश शुरू करना पड़ रहा है। ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है क्योंकि साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में क्या हो गया है, साइकोलॉजी बैठ गई कि ये कोचिंग हो गई है तो मेरी पढ़ाई हो गई। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब सर आपको कहते हैं कि पढ़ाई जब मैं पढ़ाता हूं उससे पहले अपने आप से थोड़ा पढ़ के आओ और उसके बाद भी थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन हम वो मेहनत नहीं करते। हम खुद से ना क्लास के पहले कुछ देखते हैं ना क्लास के बाद कुछ देखते हैं। पवन सर शर्मा सर बोलते हैं 24 आवर्स के अंदर जरूर इसे रिफ्रेश करना, हम नहीं करते। नोट्स में पहले पन्ने पे छाप के दिया है कि 24 आवर्स के अंदर इसे रिफ्रेश करना जरूरी है, साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं करते। हम बस ये दिमाग में रखते हैं कि हाँ ये क्लास हो गई, कोचिंग होगी, हमने दवाई खा ली है, बस अब हमें नींद आ जाएगी। Friends, this is wrong. This is not the correct approach. Come out of that zone. Realize that you actually need to put in a lot of efforts to actually understand what they have told you. You have to understand that life is not only becoming a chartered accountant or a company secretary. Life is beyond that also. Do we make plans? हम बहुत अच्छे प्लान्स बनाते, पता है? Indians are known for making plans. कई सारे लोग मन ही मन में हंस रहे होंगे जब मैं प्लान की बात करता हूं। एक से एक प्लान बनाते, बस ये लॉकडाउन खत्म हो जाए मैं रोज 12 घंटे पढ़ाई करने वाला हूँ, बस ये अभी होली आ रही है, होली के बाद में तो बस मैं देखने ही नहीं वाला, मैं तो शादी में भी नहीं जाऊंगा, मैं तो बस पढ़ाई करने वाला। ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं हम लोग जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होते। 2 दिन उठ के पढ़ोगे 15 घंटे या 12 घंटे जो भी प्लान बनाओगे, तीसरे दिन वापस से वही हो जाओगे। मेक्स अ प्रैक्टिकल प्लान, रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए जो आप एग्जीक्यूट कर सको। और प्लान बना के अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो क्या होता है पता है? मैंने कल अगर प्लान बना लिया कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैंने प्लान के हिसाब से 12 घंटे पढ़ा तो ऑटोमेटिकली मुझे मोटिवेशन आता है। लेकिन 12 की जगह अगर मैं 11 पढ़ता हूं, 10 पढ़ता हूं, 9 पढ़ता हूं तो धीरे धीरे मैं टूटने लगता हूं अंदर से, वो मोटिवेशन नहीं आता मेरे अंदर। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी प्लान बनाओ तो इट शुड बी रियलिस्टिक। जिस प्लान को आप एग्जीक्यूट कर सको ऐसे ही प्लान बनाओ और लॉन्ग टर्म में एग्जीक्यूट कर सको। सिर्फ प्लान बनाना जरूरी नहीं है, प्लान को एग्जीक्यूट करना भी उतना ही जरूरी है। When जब मैं पूछता हूं डू यू फियर, आपको डर लगता है, तो आंसर मिलेगा हाँ भाई डर तो लगता है, सबको लगता है, मुझे भी लगता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों से डर लगता है और लगना भी चाहिए। कभी सोचिए कौन कौन सी चीजों से डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग से लगता है, अटेम्प्ट से लगता है, एग्जामिनेशन से लगता है, कई बार दोस्तों से भी लगता है। दोस्तों से कैसे लगता है? यार मैं कहीं फेल हो गया, मेरा दोस्त पास हो गया तो कैसा चलेगा। और जब दोस्त पास हो जाता है और हम लोग अटक जाते हैं तो थोड़ा दुख ज्यादा होता है। कई बार फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डर लगता है कि मेरे ऊपर फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है।
उसका भी डर लगता है कि अगर मैं सही समय पे सीए नहीं बना, सीएस नहीं बना तो क्या होगा, मेरी फैमिली को मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, उसका भी डर है। एज का डर है कि अगर मैं एक सही एज पे सीए नहीं बन पाया, सीएस नहीं बन पाया तो कैसे चलेगा। जरूरी है कि मैं जरूरी एक एज में सीए बन जाऊं, सीएस बन जाऊं, ताकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तरीके से निभा सकूं। आपके दिमाग में बहुत सारे डर हैं और कहीं ना कहीं ये डर आपके एम के प्रति जाने से आपको रोक रहे हैं। समय पे ये डर आपके सामने अड़ंगा डालते हैं। इट इज क्रिएटिंग एन ऑब्स्टिकल फॉर यू एंड इट इज स्टॉपिंग यू टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। यू विल अंडरस्टैंड हाउ। जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस फियर्स। कौन कौन सी चीजों से डर लगता है, एक बार उसकी लिस्ट तो बनाओ और सोचो कि इन डर से मैं बाहर कैसे आऊंगा, इन डर से मैं सामना कैसे करूंगा, इन डर का मुकाबला मैं कैसे करूंगा। इसके बारे में कभी सोचना तो शुरू करो। हमें पता तो हो कि हमें एग्जैक्टली डर किन किन चीजों से लगता है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। आपको निश्चय करना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरे डर है और इन डर से मुझे कैसे बाहर आना है। आर्टिकलशिप, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं इस आर्टिकलशिप से रिलेटेड। कभी सोचा है कि मैं आर्टिकलशिप क्यों करनी है? मेरे पास, मेरे ऑफिस में जब भी कोई बंदा आर्टिकलशिप के लिए आता है, मैं उससे पहला सवाल हमेशा यही पूछता हूं कि भाई आर्टिकलशिप क्यों करनी है? मन में तो एक ही जवाब होता है कि इंस्टीट्यूट ने कहा है इसलिए करनी पड़ती है, इंस्टीट्यूट ने कहा है 3 साल आर्टिकलशिप करना कंपलसरी है इसलिए कर रहे हैं। इसके अलावा एक्चुअल में मैक्सिमम लोगों के पास आंसर नहीं है, लेकिन मेरे सामने तो बोल नहीं सकते। लेकिन जब भी मैं ये सवाल पूछता हूं कि आपको आर्टिकलशिप क्यों करनी है, बिलीव मी फ्रेंड्स, मेजॉरिटी डोंट हैव द आंसर व्हाई दे वांट टू डू आर्टिकलशिप। इस सवाल के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। आपकी लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दौर अगर कोई है तो वो है आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप। जब कोई सीए बनने के बाद मेरे सामने आता है, आई कैन मेक आउट कि वो बंदे ने आर्टिकलशिप कैसे की। मैं आई कैन मेक आउट कि वो उस बंदे ने आर्टिकलशिप की है या नहीं की। I know that many of you are attending this webinar with your parents. मैं आप चाहता हूं कि आपकी पेरेंट्स को ये पता हो कि आपकी आर्टिकलशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इमेजिन अ डॉक्टर, इमेजिन अ सर्जन जिसने सर्जरी सिर्फ किताबों में पढ़ी, वो कभी अच्छी सर्जरी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने सर्जरी सिर्फ किताबों में पढ़ी। क्या आप एक ऐसे सर्जन बनने जा रहे हो जिसने सर्जरी सिर्फ किताबों में पढ़ी? कभी सोचा है आर्टिकलशिप में हम क्या क्या सीखते हैं? सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम नहीं सीखते, उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो हम आर्टिकलशिप में सीखते हैं। मुझे टीम में कैसे काम करना है, मुझे अपने जूनियर्स के साथ कैसे काम करना है, अपने सीनियर्स के साथ कैसे काम करना है, अपने प्रिंसिपल को कैसे असिस्ट करना है, अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, लोगों से कैसे मिलना है, ऑफिस के प्यून से कैसे काम करना है, कैसे काम करना है और कैसे काम करवाना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको ढूंढना है आपकी आर्टिकलशिप में। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो मुझे सीखनी है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ माइंड। बहुत सारे लोगों को लगता है आर्टिकलशिप सिर्फ एक बर्डन है, भले बोलते नहीं है लेकिन मनी मन में उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है। आई कैन टेल देम दैट आर्टिकलशिप इज एन अपॉर्चुनिटी। You have to understand, are you ready with that opportunity? Are you willing to take that opportunity? जितने sincerely इस opportunity को, इस responsibility को आप निभाओगे, believe me, उतने अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। आर्टिकलशिप से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे भ्रम हैं, वो पता नहीं कहां से आए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग डमी आर्टिकलशिप की तरफ जा रहे हैं। दैट्स अगेन अनफॉर्चुनेट। आई डोंट नो why people are not realizing कि ये practical exposure कितना जरूरी है। Again coming to my point that becoming a CA is not the end, it's a start. मैं डमी आर्टिकलशिप करके दिन रात पढ़ाई करके सीए तो बन जाऊंगा, लेकिन जिस दिन मैं सीए बन जाऊंगा उसके बाद क्या? मुझे सीए बनकर 15 साल हो गए, आप आज सीए बने हो, हम दोनों वही बैलेंस शीट साइन कर सकते हैं, एक ही बैलेंस शीट साइन कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्या आपको समझेगा कि क्या आप गलत जगह साइन कर रहे हो या आप सही जगह साइन कर रहे हो? अगर आपके पास कोई क्लाइंट सलाह लेने आएगा तो क्या करोगे? किसी और सीए के पास ले जाओगे?
उस इंसान के पास ले जाओगे जिसने आपको डमी आर्टिकलशिप दी थी कि ये मेरा क्लाइंट है, इसे गाइड करो? हमने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं कि सीए बनने के बाद क्या, हम एक कंफर्ट जोन में बैठे हैं, हमें सिर्फ सीए बनना है, हमने उसके आगे के बारे में कभी सोचा ही नहीं। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी कन्विंस आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाते हैं हमारे स्टेप के लिए। कुछ पेरेंट्स मेरे पास आए भी हैं अपने बच्चे को डमी आर्टिकलशिप दिलवाने के लिए रेफरेंसेस के थ्रू, और कई बार इस तरीके से बात करते हैं जैसे डमी आर्टिकलशिप उनका अधिकार है, हक के लिए बात करने आए मेरे से। मैं उनके अधिकार को उनको इतने अच्छे से समझाता हूं कि शायद अगली बार मुझे मिले तो मुझसे बात भी ना करें। लेकिन मैं समझता हूं यही इस तरीके से जवाब होना चाहिए उन लोगों को जो डमी आर्टिकलशिप के बारे में अच्छे विचार रखते हैं, या जो डमी आर्टिकलशिप को प्रेरित करते हैं, या डमी आर्टिकलशिप को चाहते हैं। My sincere advice to the future of this profession, please don't play with your future. Take this articleship very seriously. कभी सोचा है आपकी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट डे कौन सा होने वाला है? Which will be the most difficult day in the life, in your life? इस सवाल का जवाब शायद आपके पास आज ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, the most difficult day in the life, in your life will be the day when you will qualify. आज आपके दिमाग में बस एक ही चीज है कि मुझे सीए बनना है, मुझे सीएस बनना है, उसके आगे के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। मैं बस सीए बनने के बारे में सोच रहा हूं, सीएस बनने के बारे में सोच रहा हूं, बस पढ़ रहा हूं, जैसा लोग बता रहे वैसा कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसके आगे के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब सीए बन गया, अब क्या? अब प्रैक्टिस में जाऊं कि जॉब में जाऊं? अरे जॉब में जाऊं तो किस इंडस्ट्री में जाऊं? बैंकिंग में जाऊं या फाइनेंस में जाऊं, कि ऑडिट में जाऊं या टैक्सेशन में जाऊं, लिटिगेशन में जाऊं या आईटी में जाऊं? इस सवाल का जवाब मेरे पास है ही नहीं। एंड बिलीव मी, आफ्टर every attempt, after every result, there are so many people who come to me just for taking advice कि सर मैं अब सीए बन गया, अब आगे क्या? ये सवाल का जवाब मुझसे नहीं, आपको खुद से लेना होगा कि आप कहां कंफर्ट रहोगे, आपको कहां अपने आप को फ्यूचर में देखना है, आपको कहां अपने आप को ले जाना है। हमारे ऐसे दिन नहीं आए कि जो नौकरी मिल जाए वो कर ले। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम आईटी में करियर बना सकते हैं, बैंकिंग में बना सकते हैं, फाइनेंस में बना सकते हैं, ऑडिट में बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। लेकिन अफसोस ये है कि मैंने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। सोचा इसलिए नहीं कि कभी किसी ने रियलाइज ही नहीं कराया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा ये डिसीजन आप आज लो, आपके पास वक्त है, लेकिन आज से आप सोचना शुरू करो। आप पढ़ रहे हो, आप आर्टिकलशिप करोगे, इस बारे में सोचना शुरू करोगे कि जिस दिन आप सीए या सीएस बन जाओगे उसके आगे क्या, उसकी आगे की लाइफ आपको कैसे निभानी है, आपको किस ओर अपने आप को ले जाना है। वेयर यू विश टू सी योर सेल्फ आफ्टर 15 ईयर्स। जिस दिन, आज से लेकर अगर मैं बात करूं तो 15 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो, यह आपको तय करना है। आपको आज से सोचना है उस बारे में। जैसा लाइफ जैसा जीवन अपने आप चलता रहेगा वैसा नहीं जीना है। जैसे चीजें आएगी वैसे वैसे हम जीते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें अपने करियर को खुद चूज करना है, अपने एम को खुद चूज करना है, अपने सपने खुद देखने हैं और उन सपनों को अचीव करना है, उन सपनों को जीना है। और इसलिए आपको सपने देखने पड़ेंगे, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा अपने आप को कि 15 साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं। डू यू एंजॉय योर स्टडीज? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या मैं पढ़ाई को एंजॉय करता हूं। अब कई लोग कहेंगे यार पढ़ाई भी कोई एंजॉय करने वाली चीज होती है। बिल्कुल होती है, अगर करना चाहो तो। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिन सब्जेक्ट से हमें डर लगता है, जिन सब्जेक्ट्स में हम कंफर्टेबल नहीं होते, और कुछ सब्जेक्ट हमें बड़े प्यारे होते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में हम कंफर्टेबल नहीं है उससे बड़ा डर लगता है। डर लगता है तो ऑटोमेटिकली हम एंजॉय नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें वो सब्जेक्ट तो पढ़ना है, हमें नॉलेज को तो लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी स्टडीज को एंजॉय करते हुए पढ़ना है। पॉइंट इज आवर अप्रोच इज नॉट करेक्ट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट एंजॉय आवर स्टडीज। You have to start enjoying, you have to start understanding how to enjoy your studies. At the same time, we don't enjoy our work. Okay, at this point of time, you may not be having work, but in articleship, of course, you will be having your work. कुछ काम आपको दिए जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। सर मैं सुबह उठता हूँ, क्लास जाता हूँ, उसके बाद ऑफिस आता हूँ, दिन में ऑफिस में काम करता हूँ, फिर क्लास जाता हूँ, फिर होमवर्क करना होता है,
पेरेंट्स भी सोचते हैं हमारा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, सुबह उठ रहा है 6 बजे 5 बजे, ठंड हो गर्मी हो बारिश हो, क्लास जाता है, पढ़ाई करता है, ऑफिस जाता है. To all those parents and to all those students who feel that you are doing so much for yourself, a simple answer to you all, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे. अब ये जो कुछ कर रहे हो अपने आप के लिए कर रहे हो. आप सुबह क्लास जा रहे हो तो खुद के लिए कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो तो खुद के लिए कर रहे हो, ऑफिस के बाद आके पढ़ाई कर रहे हो तो खुद के लिए कर रहे हो. आप 15 घंटे 18 घंटे जो भी मेहनत कर रहे हो ये खुद के लिए और खुद के भविष्य के लिए कर रहे हो. आर्टिकलशिप के समय कई बार होता है, आर्टिकल कहते हैं सर वो तो 5 बजे चला गया, मुझे 10 बजे तक काम करना पड़ रहा है. वो 4 बजे चला गया, मुझे 6 बजे तक काम करना पड़ रहा है. माई ओनली आंसर इज ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है. You have to understand and realize whether I'm actually taking this opportunity, I'm taking this responsibility or losing this responsibility and losing this opportunity. ये सब opportunity है. अगर मैं 6 बजे तक 8 बजे तक 10 बजे तक काम कर रहा हूं तो ये काम करके मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं और यही चीजें मुझे सीए बनने के बाद काम आएगी. और अगर ये अपॉर्चुनिटी को मैं आज रियलाइज नहीं कर पा रहा हूं, इस काम को मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, तो भविष्य में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम करनी होगी, फेस हमें ही करनी पड़ेगी. बिलीव मी फ्रेंड्स, आर्टिकलशिप में जो की हुई चीजें हैं आज इतनी काम आती है कि अगर कल मुझे 15 घंटे या 18 घंटे भी काम करना होगा तो 18 घंटे एक प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ मैं काम करूंगा. मेरा दिमाग चलता रहेगा, मेरा दिमाग फ्यूज नहीं होगा, जो कि मैक्सिमम लोगों का हो जाता है कुछ समय काम करने के बाद. ये सब उस आर्टिकलशिप की देन है जो हमने सिंसियरली की है. एंड माई ओनली एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि take this all things seriously and enjoy your studies, enjoy your work. This is going to be actually, helpful to all of you only. Please, ये चीजें मत सोचो कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, अपने आप पे दया मत करो. उन पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे के दिमाग में ये सब चीजें मत डालो कि मेरा बच्चा 15 घंटे और 18 घंटे काम कर रहा है, बेचारा ये बोल बोलकर उसके दिमाग में कुछ मत डालो. वो जो कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है. आपको उसे मोटिवेट करना है, राइट स्पिरिट के साथ, सही तरीके के साथ. जब आप इस तरीके से बात करते हो बेचारा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, कुछ नेगेटिव चीजें आ जाती है जो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करती है. प्लीज डोंट डू दैट. दिस इज जोन. यू हैव टू रियलाइज वेयर यू एक्चुअली स्टैंड, where you stand in that comfort zone or you stand in that learning zone. 80% of the people live in that comfort zone. They want to live in a risk-free atmosphere with fear, things which are easy to do. जो सब लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, हम भी वही कर रहे हैं. पूरी दुनिया जहां जा रही है हम भी वहीं जा रहे हैं. हमें सेफ चलना है. We want to play safe. We want to play with ease. We want to be ease. हमें बस करना है चीजें, हमें कोई बहुत ज्यादा सपने नहीं देखने. एंड 20% of the people are living in that learning zone where they are learning with dreams, where they are pursuing their dreams, where they are doing things they are not afraid of. They are ready to take difficult tasks with courage. They take everything as an opportunity. They keep on explore new things. They live without limits. Friends, you have to realize, you have to understand where actually you stand. A simple question to all of you. इस नागपुर शहर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं. हम कई सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं. कुछ डॉक्टर 100 रुपए लेते हैं, कुछ 200 लेते हैं, कुछ 500 लेते हैं, कुछ 1000 और कुछ लाख. उनमें क्या फर्क है? वो सभी डॉक्टर्स हैं, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है वो नॉलेज का, वो स्किल्स जो उन्होंने डेवलप की, वो स्किल्स का. 80% शायद जनरल प्रैक्टिशनर होंगे, लेकिन 20% ऐसे हैं जहां जाने के लिए आप हजारों और लाखों देने के लिए तैयार हैं. कमिंग टू आवर फील्ड, इस नागपुर शहर में 2000 के ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. क्या हर चार्टर्ड अकाउंटेंट सेम जोन पे है? क्या सेम लेवल पे है? क्या हर चार्टर्ड अकाउंटेंट उतना ही कमाता है? क्या हर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सेम स्टेज पे है? कहीं ऐसा है कि एक जो पहले सीए बना, जो सीनियर सीए वो ऊपर है और जो जूनियर सीए वो नीचे है? ऐसा भी नहीं है. क्या ऐसा है कि जो मेरिट पे सीए आया था वो ऊपर है और जो बाद में अटेम्प्ट्स लेके पास हुआ वो नीचे है? ऐसा भी नहीं है. तो फिर ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है कि कुछ सीए ऊपर है, कुछ सीए नीचे है, कुछ सीए बहुत ज्यादा कमाते हैं, कुछ सीए बहुत ज्यादा कम कमाते हैं? ऐसा क्यों है कि मेजॉरिटी ऑफ द सीए
are doing traditional practice. जो मेजॉरिटी कर रही है वही बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कुछ नई एरियाज को अडॉप्ट किया। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो नई एरिया में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये आपको तय करना है कि आपको इस 80% में रहना है या 20% में रहना है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लिविंग इन दैट कंफर्ट जोन, a risk-free atmosphere, but only 20% take the courage. They have the courage to come out of that comfort zone and to move in that learning zone and adopt to the opportunities, take the advantage of those opportunities which are moving in front of us, which are moving around us. It's up to us whether you want to take that opportunity in right spirit or not. एक प्रोफेसर है नागपुर के, जब मैं पढ़ता था तो मैंने ऐसा कहा, सर आपकी लाइव क्लासेस इतनी ज्यादा चल रही हैं, आपको लाइव क्लासेस से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो आप क्यों इतने अलग अलग शहरों में जाके क्लासेस लेते हो? वो अलग अलग शहरों में जाते थे, कभी बॉम्बे जा रहे, कभी कैलकाटा जा रहे। मैं आज से आपको 16-17 साल पहले की बात बता रहा हूं। उस समय मैं उनको कहता था, सर क्यों कर रहे हो ये सब? उन्होंने कहा, तुम आज की बात कर रहे हो, लेकिन मैं फ्यूचर को विजुअलाइज कर रहा हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ी रिस्क ली, लेकिन उस रिस्क का क्या रिजल्ट हुआ ये आप सोच भी नहीं सकते। 16-17 साल पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लाइव क्लासेस ये धीरे धीरे कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे सब ऑनलाइन होता चला जाएगा, धीरे धीरे सब वर्चुअल होता चला जाएगा, ये उस समय किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने सोचा था। दैट शोज दैट वी आर रेडी to look for opportunity, we can visualize things। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हमने चीजों को विजुअलाइज करना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है, लेकिन शायद हम उसे देख नहीं पाते, हम चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पाते, और शायद ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूं। वी डोंट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग। आज शायद आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप पढ़ रहे हो, वो भी लिमिटेड पढ़ रहे हो, क्योंकि हम क्या सिलेक्ट करते हैं कि जिस बुक में कम से कम पेज है हम उसे ही पढ़ना चाहते हैं। नोट्स क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि नोट्स बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, लेकिन बुक्स, बेयर एक्ट, इन सबको पढ़ने की हमारी हैबिट नहीं होती, और यही हमारी हैबिट सीए बनने के बाद भी होती। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, व्हाट्सएप इतना स्ट्रांग है, व्हाट्सएप में इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, लोगों के कैसे क्वेश्चन आते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा क्लाइंट है, उसका ऐसा ऐसा टर्नओवर है, इतना इतना प्रॉफिट है, क्या उसका ऑडिट कराना जरूरी है? मेरा ऐसा ऐसा क्लाइंट है, उसे ये बिजनेस करना है, क्या मैं कंपनी बनाऊं या फर्म बनाऊं? फ्रेंड्स, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं खुद ढूंढ सकता हूं, लेकिन जरूरी है कि मैं उसके लिए थोड़ा सा पढ़ लूं, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता। मेरे लिए बहुत इजी क्या हो गया है, व्हाट्सएप का कोई भी ग्रुप खोला, वहां क्वेश्चन डाल दिया, वहां 4 समझदार लोग मुझे जवाब दे देते, मेरा काम हो जाता है। लेकिन क्या ये काम करने का तरीका सही है? क्या ये काम करने का तरीका प्रोफेशनल है? ये मैं आपको रियलाइज इसलिए करा रहा हूं ताकि कल जब आप सीए या सीएस बन जाओगे और आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो प्लीज ये सोशल मीडिया में क्वेश्चन मत रेस करिएगा, जैसे हम क्वेश्चन आजकल डालते हैं ना फूडीज ग्रुप में कि भैया पास्ता सबसे अच्छा कहां मिलता है, पिज्जा सबसे अच्छा कहां मिलता है। तो जैसे ये क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं फूडीज ग्रुप में, ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रोफेशनल ग्रुप में मत पूछिएगा कि मेरे क्लाइंट का ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। हम खुद पढ़ सकते हैं, हम खुद इसका जवाब निकाल सकते हैं। We don't have a systematic routine in life। मैं आपसे सिंपल पूछूं कि कल आपका क्या प्लान है, कल का आपका क्या रूटीन होने वाला है? मैं जानता हूं मेजॉरिटी का पास इसका आंसर नहीं होगा। हम सुबह उठेंगे जब हमारी नींद खुलेगी या कोई हमें उठाएगा, उसके थोड़ी देर सोशल मीडिया पे बीतेगा, थोड़ी देर टीवी पे बीतेगा, थोड़ी देर पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी देर में क्या कितनी देर करना है, ऐसा कोई हमारा रूटीन फिक्स नहीं है। और ये सीए और सीएस बनने के बाद भी ऐसा ही होता है, हमें कंफर्ट जोन में अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, उससे बाहर निकलने के बारे में कभी हम सोचते ही नहीं। एक सिस्टमैटिक रूटीन होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक लाइफ होनी चाहिए जिसमें हर चीज के लिए डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे कब पढ़ना है, कब ऑफिस जाना है, कब क्लाइंट से मिलना है, कब स्टडी करनी है, कब कुछ नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना है, कब खुद के लिए कुछ टाइम देना है, कब मुझे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कब एक्सरसाइज करना है। ये सब मुझे अपने लिए करना है, लेकिन एक रूटीन लाइफ में करना है। और ये रूटीन लाइफ की शुरुआत कब होती है? ये तब होती है जब मैं करना चाहता हूं। और जितने जल्दी रूटीन के आप अडॉप्ट कर लोगे अपने आप को, आने वाले दिनों में उतना ही अच्छा आप सबके लिए होगा। कीप ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। जब मैं पढ़ता था, मैं आपको बता रहा हूं 2002 में मैं सीए फाउंडेशन पास हुआ। उस समय
सर्विस टैक्स नया नया आ रहा था, मैं एक सीए, एक बंदे उस समय नए नए सीए बने थे, उनसे मैं बात कर रहा था, बोले मैं सर्विस टैक्स में जाने वाला हूं। सर्विस टैक्स एक नया लॉ था, बहुत छोटी सी चीज थी सर्विस टैक्स, एक छोटा सा हिस्सा था एक्साइज का, लेकिन उसने सोचा कि मैं सर्विस टैक्स को अपना करियर बनाऊंगा, और आज वो सर्विस टैक्स का एक लीडिंग प्रोफेशनल है, नॉट ओनली नागपुर बट ऑफ महाराष्ट्र। उन समय उसने अपॉर्चुनिटी को विजुअलाइज किया, एक्सप्लोर किया, वही सब चीजें जीएसटी आने के बाद हुई। जीएसटी आने के बाद में कई सारे यंगस्टर्स ने उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। मैं आप सबको भी यही कहता हूं, जिस दिन आप सीए और सीएस बनोगे, 80% ऑफ लोगों के साथ मत जाइए, try to become among that 20%, explore about the new opportunities which are available in front of you, and just go with that. Take risk. You have that courage. You should have that courage to face that fear, which will actually help you to come out of that comfort zone and adopt and take the advantage of the opportunity which is standing in front of you. Please don't be reluctant to change. आज लॉकडाउन में सब चीजें चेंज हो गई। क्लासेस जो लाइव चलती थी, एक एटमॉस्फेयर के, एक क्लासरूम के अंदर चलती थी, वो आज लैपटॉप के सामने आ गई। अगर आज भी अगर कोई सोचे नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे नहीं पढ़ा सकता, मैं तो ऐसे काम नहीं कर सकता, वो कभी चेंज के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप अपने फादर को कहिए कि पापा आप ऐसे बिजनेस मत करिए, आप वैसे बिजनेस करिए, वो बोलेगा मुझे मत सिखा। हो सकता है आप जो कह रहे हो उसमें कोई बात हो सकता है उससे उन्हें बिजनेस में कुछ फायदा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जा करके वो एक ऐसे स्टेज में आ चुके हैं where change is not so easy for them. एक दूसरी प्रॉब्लम हम सबके बीच में है कि we don't delegate work. I'm talking about professionals. Friends, जब मैं सीए बनता हूं तो मैं बहुत सारे सीनियर्स के पास जाता हूं काम लेने के लिए। People are not ready to delegate work. जब मैं आर्टिकलशिप के लिए जाता हूं तो बहुत सारा मेजर काम मुझे नहीं दिया जाता, मेरे बॉसेस मुझे बहुत मेजर काम देना नहीं चाहते। they are not ready to delegate me to work. We have to realize what can be the reason behind that. ये क्या कारण है कि मुझे ये काम नहीं देते? ये क्या कारण है कि मुझे छोटे मोटे ही काम करने पड़ते हैं, एक मेजर, एक लेवल के ऊपर के काम मुझे करने नहीं पड़ते, वो सर खुद ही कर लेते हैं, या कोई सीए करता है, मैं नहीं करता। मैं तो कर सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं करने मिलता? शायद मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, शायद मैंने उस काम को मैंने उनके सामने ऐसा एक्सपीरियंस रखा है कि मैंने पास में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। शायद ऐसे बहुत सारे कारण होंगे, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जिस वजह से मेरे बॉसेस या मेरे सीनियर मुझे वर्क डेलीगेट करना नहीं चाहते। ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता हो कि जब भी हम कोई काम लेते हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को करेंगे, उतना आगे के काम और उतने आगे के एक्सपोजर हमें मिल पाएंगे। अगर हम कोई भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई आपको आगे काम सिखाएगा। आर्टिकलशिप हो या सीए बनने के बाद का दौर, काम आपको खुद सीखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद सीखनी है। आपको ये सब कोई काम सिखाएगा, जैसे ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल सिखाया गया था, या जैसे पवन सर आपको टैक्सेशन सिखाते हैं, ऐसा कोई काम प्रैक्टिकल फील्ड में भी आपको सिखाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। You have to realize that it is your responsibility and you have to learn it on your own. Nobody is going to teach you. Few important steps. जितने ज्यादा लंबे समय तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे ना, उतना डिफिकल्ट होगा आपको जोन से बाहर आना। आप विजुअलाइज करिए, आज मैं अगर 20 साल से एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा हूं और 21वें साल में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी आंखों के सामने आ जाए और कोई कहे कि इस नई फील्ड को आप एक्सप्लोर करो, इस नई फील्ड में काम करो, मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। 21वें साल में एक नई फील्ड को एक्सप्लोर करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। आज मैं 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, 6वें साल में कोई मुझे कहे जॉब कर लो, पॉसिबल नहीं होगा। कई लोग हैं जो जॉब से प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, 10 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, 11वें साल में जीरो से प्रैक्टिस शुरू करना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो जितना ज्यादा समय आप इस कंफर्ट जोन में रहोगे, उतना ही डिफिकल्ट होगा आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आना। स्टार्ट मूविंग अहेड। हम सबको ग्रोथ चाहिए, हम सबको सक्सेसफुल बनना है, हम सबको प्रोग्रेस चाहिए, और ये ग्रोथ, ये सक्सेस और ये प्रोग्रेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मूवमेंट। हमें मूव करना होगा इस कंफर्ट जोन से बाहर, और अगर हम नहीं करेंगे
हमें ही डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट्स करिए, लेकिन ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स करिए, ऐसे भी एक्सपेरिमेंट मत करिए जो इलॉजिकल। फ्रेंड्स, आई हैव सीन पीपल वर्किंग इन फाइनेंस, देन कमिंग आउट, मूविंग फॉर अनदर फील्ड, मे बी ऑडिट, देन गोइंग टू बैंकिंग, फिर सब छोड़ छाड़ के प्रैक्टिस में आ जाते हैं। लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करना जरूरी है, बट वो एक्सपेरिमेंट्स कोई लॉजिक के साथ होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए। सिर्फ कुछ मेरे आंखों के सामने आ जाए और मैं उसे अडॉप्ट कर लूं, या सिर्फ पैकेज देख के मैं मूव करूं, ये शायद सही चीज नहीं होगी। मैं कभी ऑडिट में काम कर रहा हूं, कभी बैंकिंग में जा रहा हूं, कभी फाइनेंस में आ जा रहा हूं, मैं इतना मूव कर रहा हूं अलग अलग फील्ड में कि मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड का उतना एक्सपीरियंस नहीं आया, और शायद इसी वजह से मैं एक लेवल के ऊपर नहीं आ पाया। IIM अहमदाबाद के बारे में हम सब जानते हैं। IIM अहमदाबाद, हम क्या सोचते हैं कि IIM अहमदाबाद से अगर कोई बाहर निकल गया, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पे पहुंचेगा, करोड़ों रुपए का पैकेज उसे मिलेगा। ये हमारा पिक्चर है जो हमने बनाया है IIM अहमदाबाद के बारे में। लेकिन एक बात बताओ, हर साल 150 लोग वहां से निकलते होंगे, 200 लोग वहां से निकलते होंगे, क्या वो 150 या 200 जितने भी लोग वहां से निकलते हैं, क्या वो सब टॉप पे पहुंचते हैं? क्या आंसर है नहीं। तो क्या जो टॉपर्स थे वो टॉप पे पहुंचते हैं? क्या आंसर है नहीं। तो फिर क्या कारण होगा, कौन टॉप पे पहुंचता है और कौन नीचे रह जाता है? ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कहां पहुंचा। आई नो वन पर्सन, a pass out from IIM Ahmedabad. After coming out of that organization or that institution, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ज्वाइन किया, कुछ समय वहां काम किया, वहां से बाहर आए, फिर दूसरी इंडस्ट्री गए, फिर तीसरी इंडस्ट्री गए, फिर उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो नहीं चला तो फिर चौथी इंडस्ट्री गए, फिर एक अल्टीमेटली एक दूसरी इंडस्ट्री में गए, ऐसे एक्सप्लोर करते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए, और फाइनली रिटायर हो गए। लेकिन जब रिटायर हुए तो वो एक स्टेज पे रिटायर नहीं हुए जिस स्टेज पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक IIM अहमदाबाद का पास आउट होगा। ये बहुत एग्जाम्पल हम सबके लिए रेलेवेंट है कि एक्सपेरिमेंट लाइफ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसीजन मेकिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है। राइट डिसीजन राइट समय पे लेना बहुत जरूरी है। प्लीज डोंट एक्सपेरिमेंट इलॉजिकली, डोंट डू योर वर्क, एंजॉय इट। एक बहुत कॉमन सिनेरियो बताता हूं आपको। मैं अगर किसी सीए को पूछूं और कैसे चल रहा है, बस यार लगे हैं, बस वही ड्यू डेट खेल रहे हैं, एक ड्यू डेट खत्म होती है, दूसरी ड्यू डेट चालू हो जाती है, बस एक काम खत्म होता है, दूसरा काम शुरू हो जाता है। मैं आप सबसे पूछूं, बस एक क्लास खत्म होती है, दूसरी क्लास चालू हो जाती है, बस वही दिन भर क्लास करो, पढ़ाई करो। ये अगर आपका अप्रोच है, अगर ये आपका जवाब है, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ चीजें कर रहे हो, एंजॉय नहीं कर रहे। आप पढ़ाई कर रहे हो, उसे एंजॉय नहीं कर रहे। आप काम कर रहे हो, उसे एंजॉय नहीं कर रहे। अरे काम है, उसे एंजॉय करो। अगर ड्यू डेट्स की बात ड्यू डेट्स आ रही है, काम के बाद काम आ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव चीजें हैं। मेरे क्लाइंट से मैं एक दिन बात कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई मेरा शोरूम मैं 24 आवर्स चालू रखूं अगर कस्टमर्स आए तो। हमें तो अच्छा लगता है, कस्टमर्स आ रहे हैं, बिजनेस मिल रहा है, हमें तो ये पॉजिटिव चीज है, हम तो 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा सबक है हम सबके लिए। अगर एक ड्यू डेट खत्म होने के बाद दूसरी ड्यू डेट आ रही है, एक क्लास खत्म होने के बाद दूसरी क्लास आ रही है, दिन भर अगर मैं बिजी हूं, दिन भर मैं नई नई चीजें सीख रहा हूं, और अगर मैं इन सबको एंजॉय कर रहा हूं, इससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं नेगेटिव फॉर्म में से क्यों ले रहा हूं? एंजाइटी कम फ्रॉम समथिंग विच इज अननोन। कभी भी कोई नई चीज करने के लिए अगर आपको कोई कहता है ना, तो उससे डर लगता है आपको। वो डर क्यों लगता है? क्योंकि इसके बारे में आपकी जानकारी नहीं है। आप जानकारी लीजिए, उसे समझिए, शायद आपका डर निकल जाए। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर आपको लगता है ना, जो आपके साथ हमेशा खड़ा हो, आपको हमेशा मोटिवेट करे, आपको हमेशा ट्रैक पे रखे। आपको पता होना चाहिए वो कौन है आपके लिए। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं। यू नीड समवन इन योर लाइफ टू कीप यू ऑन ट्रैक। सी, व्हेन यू विल कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, देयर मे बी फियर, बहुत सारा डर होगा आपके अंदर, आपको बहुत सारी हिम्मत लगेगी, आपको बहुत सारा मोटिवेशन लगेगा, और उस मोटिवेशन के लिए आपको गाइडेंस लगेगा। उस गाइडेंस के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए। जस्ट फाइंड दैट समवन इन योर लाइफ। रीडिंग एंड लर्निंग शुड बी योर हैबिट। कुछ भी रीडिंग करो, थोड़ा नॉर्मल बुक्स पढ़ो, कॉमिक पढ़ो,
लेकिन पढ़ने की आदत डालो, लर्निंग की आदत डालो। आपका रोज का शेड्यूल होना चाहिए 15 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी आप डेडिकेट करिए। ये आपका डेली का शेड्यूल होना चाहिए रीडिंग और लर्निंग के लिए। बिलीव मी, ये हैबिट आप जितनी जल्दी और जितने अच्छे से डालोगे, लॉन्ग टर्म में आपको उतना ही फायदा होगा। एंड प्लीज डोंट कंप्लेन। ये जो बार बार हम अपने आप से कंप्लेन कर देंगे, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही, इतना पढ़ना पड़ रहा, ये इंस्टीट्यूट ये कोर्स करने को कहती है, वो कोर्स करने को कहती है, प्लीज डोंट कंप्लेन। बिलीव मी, ये सब चीजें जो आपके लिए है वो आपके फायदे के लिए है। सवाल सिर्फ इतना है कि मैं उसे एंजॉय नहीं कर रहा हूं। जिस दिन मैं इसे एंजॉय करना शुरू कर दूंगा, अपने आप चीजें मेरे लिए पॉजिटिव होनी चालू हो जाएगी। वो कहते हैं ना, इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार, इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा भले गिर जाए मगर तालियां बजती रहे। अगर इन लाइंस को मैं अडॉप्ट कर लूं, मैं उस सपने के बारे में फोकस करूं जो सपना मैंने खुद के लिए देखा है, तो शायद कोई भी चीज मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं होगी। आपका सबसे बड़ा एसेट क्या है, ये आपको तय करना है। कभी सोचा है आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस सवाल के बारे में मैं सबसे पूछता हूं, ये सवाल मैं सबसे पूछता हूं कि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसका जवाब लोगों के पास नहीं होता। अभी हम लोग वर्चुअल बैठे हैं, आमने सामने होते तो मैं आपसे पूछता, शायद उस समय ले सकता, आज नहीं ले सकता हूं, लेकिन स्टिल आप खुद अपने आप से सोचिए कि क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है कि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं आपको बताऊं, वो है आप खुद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ इज आई। आपको अगर इस पर विश्वास नहीं है, 5 मिनट देता हूं, कभी भी 5 मिनट किसी भी इंसान से बात करना, उसमें आई, मी, माई सेल्फ, माई वर्क, ऐसे कोई भी शब्द नहीं आना चाहिए। कभी किसी से 5 मिनट नॉर्मल बात करके देखना जिसमें ये कोई भी शब्द ना आए, आई, मी, माई सेल्फ, ऐसे कोई भी शब्द ना आए। आप देखिएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, शायद 2 मिनट भी ना कर पाए। ये आई, मी, माई सेल्फ मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि मैं 2 मिनट 3 मिनट इसके सिवा बात भी नहीं कर सकता। जनरल, नॉर्मल, आप खुद समझ सकते हैं ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे फोकस करना पड़ेगा कि ये आय जो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो वो आय कैसा होना चाहिए? मुझे जो कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, वो कैसे आऊंगा मैं? मुझे इंस्पिरेशन चाहिए, मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। और ये जब तक ये चीजें नहीं होगी, तब तक शायद मैं उस जोन से बाहर नहीं आ पाऊंगा। I should be confident. I should be motivated. I should be focused. I should have that inspiration. I should have that courage to improve myself. And if I have all these courage, if I have this courage to come out of all these things, nobody can stop me from achieving success. And believe me, friends, you can do it. और एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछता हूं, हम सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आपके लिए सक्सेस क्या है? क्या कभी सोचा है कि आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है? Have you ever thought what is the definition of success for all of you? शायद इस सवाल का जवाब भी आपके पास नहीं होगा। हम सबको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, हम सबको सक्सेस चाहिए, पर ये सक्सेस क्या है? सक्सेस की परिभाषा क्या है? मेरे लिए सक्सेस क्या है? मैं किस दिन कहूंगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया? शायद इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे जाना तो है किसी घर, लेकिन उस घर का पता मेरे पास नहीं है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, या आप तय करें कि आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या होगी। या आप तय करें कि किस दिन आप कहोगे कि आप सक्सेसफुल हो गए। जिन रास्तों पे मैंने सफलता की बात सुनी है, जिन रास्तों पर मैंने सफलता की बात सुनी है, उन राहों पर अक्सर मैंने कड़ी धूप देखी है। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। कड़ी धूप से लेकर आपको आगे बढ़ना है। बहुत ही टफ जर्नी आपको फेस करनी है, लेकिन अगर इस जर्नी को मैं एंजॉय करूं, मेरा जो रास्ता है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। Please don't complain. Have a positive energy. Have a focused attitude. Have a positive energy. Have a positive attitude. Just be with right people, with positive people, and believe me, nobody can stop you for whatever you want to achieve in your life. Thank you so much for your patient listening. I am sure कि आज जो चीजें, जो प्रैक्टिकल चीजें मैंने आप सबके साथ शेयर की है, इसका कहीं ना कहीं कोई एडवांटेज आप सबको मिलेगा। And in case you have any doubt, any questions, I'll be more than happy to take it. Over to you, Pawan sir.
Yes, sir. Thank you so much. Friends, if you have any doubt, please you can ask. Any questions? I'll be more than happy to take questions. जो भी आपके सवाल हो दिमाग में, आप बेझिझक पूछ सकते हो. Good evening, sir. Myself, Aman Jaiswal. Can you please speak louder? Hello, थोड़ा sir. सा Can you आवाज hear आपकी me? कम आ रही है. Yes, थोड़ा सा जोर से बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है. Hear me, sir? Can you hear me, sir? थोड़ा जोर से बोलिए या हेडफोन निकाल के बोलिए, शायद आपकी आवाज बेहतर है. संदीप सर, आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो ना. Yes, Aman. Can you hear me, sir? Now? आपकी वॉल्यूम काफी लो है, फिर भी बोलिए. I would like to ask you from Sandeep Jotwani, sir, that he was a Maharashtra boards ranker of 12th. So basically, what would be your advice for 12th standard students? What would be your study tips so that we can also improve in our studies further for CA? Well, Aman, actually I lost that merit for my 4 marks. I like to tell you कि मैं मेरिट आ नहीं पाया था. 4 मार्क्स से मेरा मेरिट छूट गया था. I should be honest with all of you. लेकिन मैंने थोड़े से अपने एफर्ट्स को चेंज किया, एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में दिया. देखिए, मेरे पास 2 ऑप्शन थे. कॉलेज लाइफ जहां मेरे फ्रेंड्स थे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां मैं बहुत कंफर्टेबल था, रोज सुबह कॉलेज जाना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, लेक्चर्स अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत एग्जाम के पहले पढ़ लो और एग्जाम पास कर लो. और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि थोड़ा सा फ्रेंड्स को मैं थोड़ा सा बाजू में रख दूं, थोड़ा सा फ्रेंड्स को मैं सेकंड प्रायोरिटी में डाल दूं. मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी क्लासेस, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा शेड्यूल, मेरी पढ़ाई, मेरी टेस्ट सीरीज, जितनी टेस्ट सीरीज हुई, जो जो मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया, डेली रूटीन लाइफ को मैंने सेट किया, डेली प्लान्स मैंने बनाए, और सिस्टमैटिक रूटीन और सिस्टमैटिक प्लान्स की वजह से मैंने पढ़ाई की और एग्जीक्यूशन किया उस प्लान को, तो ऑटोमेटिकली चीजें बदलनी शुरू हो गई. देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं. यह आपको तय करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. आप 12th में हो, आने वाले 5 साल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. वो 5 साल कैसे बिताने ये आप तय करें. आपको एंजॉय करना है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए, खेलिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए. ये एक तरीका हो सकता है आगे 5 साल 6 साल आपके लिए. दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं मैक्सिमम फोकस अपनी पढ़ाई पे करूं, अपने करियर पे करूं, बस आने वाले 5 साल तक. वो 5 साल के बाद जब मैं CS बन जाऊं, उसके बाद दुनिया पड़ी है, लाइफ पड़ी है मेरे पास, मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे सोशल सर्कल के लिए, मेरे एंजॉयमेंट के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी पार्टीज के लिए. मैं ये नहीं कहता कि आज आप खेलिए मत, मैं ये नहीं कहता आप आज पार्टीज मत करिए. मैं बस इतना कहता हूं उसको सेकंड प्रायोरिटी डाल दीजिए, उसे आप थर्ड प्रायोरिटी डाल दीजिए. आने वाले 5 साल 6 साल आपकी पहली प्रायोरिटी, आपका विजन, आपका फोकस वो होना चाहिए कि मैं आने वाले 5 साल में सीए बन जाऊं, CS बन जाऊं, जिसके बाद मैं अच्छे से अपनी लाइफ जीऊं, अपनी ड्रीम्स के प्रति फोकस रहूं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकूं. ये 5 साल भी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि इन 5 साल में थोड़ा एंजॉयमेंट ज्यादा हो जाए और सीए बनने में जो 5 साल लगने वाले थे वो 6 या 7 साल लग जाए. ये 6 या 7 साल जो 2 साल में वेस्ट करूंगा, ये मुझे बहुत महंगे साबित होंगे. तो बेटर है 5 साल मैं फोकस रहूं अपनी पढ़ाई को लेकर, बाद में दुनिया पड़ी है एंजॉय करने के लिए, पूरी लाइफ है मेरे पास एंजॉय करने के लिए. बस मैंने भी यही अप्रोच रखा कि आने वाले 5 साल मैं पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी दे देता हूं. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं. मेरे फर्स्ट कजिन की शादी थी, मैं उस शादी में भी नहीं गया था क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज चल रही थी. मैंने टेस्ट सीरीज को भी इतना इंपॉर्टेंट दिया था कि ये टेस्ट सीरीज को मैं तब इंपॉर्टेंट उसका आउटपुट ले सकता हूं जब मैं उसे सीरियसली दूं.
मैं टेस्ट सीरीज में अगर ये सोचूंगी तो टेस्ट सीरीज है, क्या फर्क पड़ता है फेल हो जाए तो। लेकिन मैंने अपने फर्स्ट किस्म की शादी में मैं रिसेप्शन पे किया था, वो भी थोड़ी देर के लिए। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपने 12th से रिलेट किया, मैं आपको 12th का एग्जांपल दे रहा हूं। ये डेडिकेशन अगर आप रखते हैं तो बहुत जल्दी आप सीए या सीएस बन जाएंगे। उसके बाद आपकी ड्रीम्स हैं, बहुत सारी ड्रीम्स हैं। हमें वर्ल्ड टूर भी करना है, हमें बंगला भी बनाना है। अपनी ड्रीम्स के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय होगा, तो उस समय को हम अच्छे से यूज करेंगे। Thank you so much for your kind words. It's a great privilege for me to listen you. थैंक यू। Thank you so much. It was really amazing, Sandeep sir. I was Hello. attending full time. Yes, friends, please ask your questions. अभी सर मौका है। हेलो, Yes. एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे देखे कि जो एकदम एंड पॉइंट पे आके लीव कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। सर अगर मैं उस पॉइंट पे कभी आया, सर वो ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया, तो मैं उस टाइम पे क्या सोचूं कि सर मैं ड्रॉप ना करूँ एक एंड पॉइंट पे आके। मैंने बहुत सारे जो भी सीनियर्स है मेरे, मैंने ऐसे 2-4 लोगों को देखा। इवन माय फैमिली में भी एक दीदी थी, वो सीए फाइनल में आके ड्रॉप कर रही है, कर दिया उन्होंने। तो सर उस पॉइंट पे पहुंच के मैं ऐसा ना करूँ, तो सर उस पॉइंट पे क्या आना चाहिए सर मेरे दिमाग में? मैंने आपको खुद एग्जाम्पल बताया कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था स्कूल तक, मैं कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं था। मैंने एक राइट अप्रोच से एक पर्टिकुलर चीज को अचीव किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ मेरे स्कूल का टॉपर भी था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। उसका कारण था उसका अप्रोच सही नहीं था। सीए में या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है, वो होता है अप्रोच। हम अपनी अप्रोच को अगर राइट डायरेक्शन में, राइट पाथ पर नहीं रख सकते, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं। और कई बार हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है, कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा, ऐसे कई सारे एग्जांपल आपके सामने आएंगे कि उसने सीए छोड़ दिया, उसने सीए छोड़ दिया। मेरे सामने भी आया था। कई सारे लोगों ने मुझ पे भी क्वेश्चन किया था कि भाई तू इतना भी होशियार नहीं है कि तू अपने आप को 2% या 3% में रखता है कि जो सीए बन जाते हैं। कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 2% या 1% सीए का रिजल्ट क्यों ना आता हो, मैं वो 1% में हूं, मैं वो 2% में हूं। जब तक ये कॉन्फिडेंस लेकर आप आगे नहीं चलोगे, तब तक आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे। मैं सभी को एडवाइस करूंगा, प्लीज इन ऑब्स्टिकल्स को आप इग्नोर करिए। आप सीए बन चुके हो, आप सीए बनने वाले हो, ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हो, आप किसी भी, मुझसे नहीं, किसी भी टीचर को पूछ लीजिए, अगर आपके एफर्ट्स आप राइट डायरेक्शन में दोगे, आपकी मेहनत में आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, अगर आप दी गई टिप्स के आधार पर पढ़ोगे, आप कहीं से भी आप पीछे नहीं मुड़ सकते, आप फेल नहीं हो सकते। ये होता है, कई सारे कारण होते हैं जब लोग ड्रॉप करते हैं। केस टू केस होता है, कई सारे कारण होते हैं उसके पीछे। हम एक जनरल ये फॉर्म नहीं बना सकते कि भाई हमारे सामने होगा तो ये क्यों, हम क्या करेंगे। पहली बात, हम क्यों इसके बारे में सोचे कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं फोकस्ड हूं, तो कभी ये सिचुएशन मेरी आंखों के सामने नहीं आएगी। ये विश्वास मुझे खुद पे रखना है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही मुझे आगे बढ़ना है। अगर आप आज से इसके बारे में सोचोगे, तो आप अपने दिमाग से नेगेटिविटी कभी निकाल नहीं पाओगे। तो जितना हो सके उसके बारे में मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। ओके सर, थैंक यू। Hello, sir. Am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल। थोड़ा सा जोर से बोलिए। Sir, actually, somewhere I feel that my efforts towards studies is uh, getting a bit less, because the efforts that I used to put to study in 10th standard, somewhere I feel that I did not put as much effort in 12th standard, because I was a first ranker in my school 10th standard, and then 12th mein somewhere my marks was getting lower, and
I don't know why that was happening. And somewhere I feel that I don't put as much effort as I should. So I don't know why is that happening. आपके सवाल में ही आपका जवाब है। सबसे बात आसान ये है कि आपको पता है कि आपने उतने एफर्ट्स नहीं दिए, अब कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। वो ऑब्स्टिकल्स क्या है ये आपको डिसाइड करना है। शायद वो 11th 12th की कॉलेज लाइफ या वो नए फ्रेंड्स, शायद उसमें आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आपको लगता है कि यार ये ज्यादा मजा आ रहा है। देखिए 10th तक मैं फोकस था, 10th तक शायद ये ऑब्स्टिकल्स मेरी आंखों के सामने नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही मैं 10th के बाहर आया, एक नई जर्नी मैंने शुरुआत की, एक नए लोगों के साथ जब मैं आया, एक नए सफर पे मैं निकला, तो सफर में कुछ साथी मुझे ऐसे मिल गए जो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, या मेरा ध्यान उन साथियों के साथ जो मैं टाइम स्पेंड करता हूं, उन नई नई चीजों में एक्सप्लोर करने में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, उस सोशल मीडिया में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, उस मोबाइल फोन के साथ मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं, उस मोबाइल के साथ, उस फेसबुक के साथ। ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल मेरी आंखों के सामने हैं जो ऑब्स्टिकल कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल रहे हैं मेरी जर्नी में। ये मैं नहीं जानता, आपने ये बहुत बड़ी हिम्मत की काम किया है कि आपको पता है कि आपने उतने एफर्ट्स नहीं लिए, पर वो एफर्ट्स क्यों नहीं लिए, वो ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा, खुद एनालाइज करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन को कि आपके एफर्ट्स क्यों राइट डायरेक्शन में नहीं आए। और मैं पहले कह चुका हूं, आपको इन ऑब्स्टिकल्स को रोकना है, रोकना नहीं है, थोड़ा सा कम करना है। कितने समय के लिए? बस आने वाले 5 साल के लिए। 5 साल स्टडीज को पहली प्रायोरिटी बनाइए, स्टडीज को पहली प्राथमिकता दीजिए। 5 साल के बाद ये सारी चीजें तो वही रहेगी ना, मेरे फ्रेंड्स वही रहने वाले, मेरी फैमिली वही रहने वाली है। मैं अपनी बाकी प्रायोरिटीज को बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी भले बना लूं, बाद में बहुत सारी पार्टी में करूंगा, बाद में बहुत सारा टाइम मैं फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करूंगा, लेकिन आने वाले 5 साल बस मैं इन ऑब्स्टिकल्स को थोड़ा सा बाजू में रख दूं। अब ऑब्स्टिकल्स हर एक के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मैंने अपना एग्जांपल आपको बताया है। मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने में बहुत मजा आता था, कॉलेज जाके कॉलेज के बाहर मस्ती करने में, कैंटीन में समय बिताने में बहुत मजा आता था, लेकिन लेक्चर्स अटेंड करने में बिल्कुल मजा नहीं आता था। लेकिन वही 12th स्टैंडर्ड में मैंने जब ऑब्स्टिकल्स को हटाया तो 12th में रिजल्ट अच्छा आया। 12th का रिजल्ट जब अच्छा आया तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिला, और मोटिवेशन मिलते मिलते चैलेंजेस मैंने नए नए लेते गया, नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता गया, खुद पे कॉन्फिडेंस रखा, और वही कारण था कि एक ऐसे स्टेज पे आया जहां पर जाना मैं चाहता था, या मैं उस डायरेक्शन में हूं जहां मैं जाना चाहता हूं, या मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा हूं जहां मैं लाइफ को एंजॉय कर सक रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं हैप्पी हूं, और मैं चाहता हूं आप सब भी अपने एजेंडा, अपनी लाइफ को इसी तरीके से जिए जहां आप लाइफ को एंजॉय करें, आप लाइफ में हैप्पी रहें, कंफर्टेबल ना रहें। Thank you so much, sir. That was really helpful. हेलो सर, आर यू हियरिंग मी? यस सर, सीए के साथ बीकॉम करना बेटर रहता है बीबीए? let's be focused on our topic, that is comfort zone. हाँ, आप ये पूछना चाह रहे हो कि सीए के साथ ज्यादा कंफर्टेबल क्या रहेगा, सीए या बीकॉम या बीबीए? ये अगर आप पूछना चाह रहे हो तो मैं आंसर नहीं करूंगा, ये आप खुद, इसके लिए आपको बेटर पवन सर गाइड कर पाएंगे। लेकिन प्लीज मैं इनडायरेक्टली इतना ही कहूंगा कि जो भी डिसीजन लो वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। आप जो भी कोर्स करो, वो कोर्स आपको आगे क्या मदद करने वाला है ये सोच के करना चाहिए। सीए बनने के बाद भी मैं देखता हूं, आप तो अभी सीए कर रहे हो, मैं सीए बनने के बाद भी देखता हूं कि अगर कोई फलाना फलाना कोर्स इंस्टीट्यूट में हो रहा है, लोग कर लेते हैं। भैया क्यों किया? बस हो रहा था तो मैं कर लिया। भैया क्यों किया? वो कोर्स का तुमसे क्या लेना देना? वो कोर्स करने के बाद तुमको उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? जस्ट बिकॉज ये कोर्स है और हो रहा है इसलिए मैं कोर्स नहीं कर रहा हूं। वो कोर्स का मुझे क्या एडवांटेज मिलने वाला है या मैं क्या एडवांटेज लेने वाला हूं, जब तक ये दिमाग में मेरे ना हो, प्लीज वो कोर्स मत करिए। अपने आप को अपने नाम के सामने बस वो डिग्री लिखने के लिए कोई कोर्स मत करिए। आप वो कोर्स तब करिए जब वो कोर्स करने का आपको कोई फायदा हो। मैंने इनडायरेक्टली आपको आंसर किया है, डायरेक्टली पवन सर भी आपको यहां आंसर नहीं करेंगे। पवन सर से आप 1-to-1 मिल लीजिएगा, आई एम श्योर पवन सर आपको तभी आंसर करेंगे कि आपने कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए। बट इतना सवाल अपने आप से जरूर पूछना कि मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूं, ये कोर्स करने का मुझे क्या फायदा मिलने वाला है।
सिर्फ नाम के सामने लिखने के लिए मैं कोई भी कोर्स ना करूं। सिंपल एडवाइस चाहिए। थैंक यू सर। Hello, sir. हेलो। Sir, sir, I want to basically ask कि एक गांव का स्टूडेंट क्या सीए बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? मुझे एक बात बताओ, गांव का स्टूडेंट और शहर के स्टूडेंट में क्या फर्क है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, मेरे आर्टिकल की बात करता हूं। नागपुर जबलपुर रोड पे एक छोटा सा कस्बा है एमपी में, उसकी बेसिक स्कूलिंग वहां हुई हिंदी मीडियम में। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश का एक छोटा कस्बा जहां हिंदी मीडियम में पढ़ा, हिंदी मीडियम में पढ़ के वो नागपुर आया। नागपुर आके उसने ठाना कि मैं सीए करूंगा। नागपुर आके उसने सारे के सारे अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए और उसने मैक्सिमम क्लासेस, जो मैक्सिमम सब्जेक्ट है वो उसकी सेल्फ स्टडी की, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उन्हीं की उसने क्लासेस की। तो आपको यह तय करना है, आपका फोकस क्लियर है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो आपको कौन रोक रहा है? देयर इज नो बाइफर्केशन कि आप शहर के हो या गांव के हो। मैं तो आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, और जो लड़का सी बना वो लास्ट ईयर ही बना, और ऐसे कई एग्जांपल है। हमारे इंस्टीट्यूट के पास चेयरमैन सुरेंद्र दुरुक्कर सर, उनकी पूरी स्कूलिंग मराठी मीडियम में हुई है। कई सारे लोगों के सवाल ये भी होंगे कि मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूं, क्या मैं सीए कर सकता हूं? सुरेंद्र दुरुक्कर सर चेयरमैन बने नागपुर ब्रांच के, उनकी पूरी स्कूलिंग जो हुई वो मराठी मीडियम से हुई। मराठी मीडियम से पढ़कर वो आगे गए, सेमी इंग्लिश में पढ़ाई की, उसके बाद वो सीए में आए, सीए बने, और आज एक नागपुर के रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपका बैकग्राउंड क्या है? हिंदी मीडियम है, मराठी मीडियम है, गांव है, शहर है, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो आपका एफर्ट्स और आपका डायरेक्शन। Okay, sir. Thank you, sir. गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं भी सीए फाउंडेशन में हूँ एंड सर मेरे को आदत है कि मैं 9 to 10 आवर्स लाइब्रेरी में इजीली पढ़ पाती थी, और अभी लॉकडाउन है तो घर पे मैं उतना आउटपुट नहीं निकाल पा रही हूँ। मेरा पढ़ाई में इतना फोकस नहीं लग पा रहा है, कॉन्सेंट्रेट भी इतना नहीं कर पा रही हूँ। सर ऐसे में मैं क्या करूँ? ये ऑब्स्टिकल तो बहुत बड़ा है और सब लोगों के सामने है। आज मैं भी मैक्सिमम काम घर पे कर रहा हूँ, घर पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल मेरे सामने भी है। आपको लाइब्रेरी की हैबिट है, लाइब्रेरी में शांति मिलती थी, घर पे शांति नहीं होगी। शांति की तलाश हमें करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई मेरा ऐसा रिलेटिव, कोई मेरा ऐसा फ्रेंड जहां पर मुझे वो शांति मिले, जहां मुझे वो एकांत मिले, वो एक रूम मिले जिसकी मुझे जरूरत है। बट फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल, एंड स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। हम एक ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जहां लाइफ बहुत सारे अलग अलग फेज हमें दिखाती है। बी रेडी फॉर ऑल दोज फेज ऑफ योर लाइफ। थोड़ा सा टफ हमें रहना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। एक ऐसे ऑडिट पे गए थे, वहां खाना भी नसीब नहीं हुआ था। दिन भर पार्ले जी खा के हमने टाइम स्पेंड किया था। ये कहीं ना कहीं ये परवरिश है हमारी, जिसके लिए जो हमें ये इतना स्ट्रांग बनाती है कि एक रिमोट एरिया पे मैं ऑडिट कर रहा हूं जहां खाना भी नहीं मिला, वहां पर पार्ले जी बिस्किट खा करके हमने पूरा दिन निकाला। आई एम जस्ट नरेटिंग दिस बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू लिंक दिस इंसिडेंट कि यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल, अ टफ प्रोफेशनल। और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस, अभी तो आप सीए फाउंडेशन में, आने वाले दिनों में बहुत सारे नए नए चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। हमें उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, हमें उन चैलेंजेस को स्ट्रांगली फेस करना पड़ेगा। अब ये भी एक ऑब्स्टिकल है मेरी आंखों के सामने, जहां मैं लाइब्रेरी नहीं जा पा रहा हूं, जहां मुझे घर पे ही बहुत सारे डिस्टर्बेंस के साथ पढ़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन इस ऑब्स्टिकल का कोई पर्याय नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं। इसका सोल्यूशन है कि मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि इस ऑब्स्टिकल के साथ मैं जी सकूं। शायद यही आपका आंसर फिलहाल हो सकता है। यू कैन स्टिल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, यू कैन स्टिल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। हो सकता है कहीं आसपास में आपके फ्रेंड्स के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, एक ऐसा कोई जरिया मिल जाए जिससे कि ऑब्स्टिकल को आप कोप अप कर पाए। थैंक यू सो मच सर। I must appreciate Pawan sir, your students
Still around 125 students are still there. It's almost 1.5 hours we are discussing about this topic, and I must appreciate. And they have been attending the classes since morning, Yes, even on a very weekend. I Hello. must also appreciate you all, friends. Yes. Hello. Yes, Sir, बोलिए. I wanted to ask you कि आप how do you keep going in every phase of struggle? कैसे? How? Example. ठीक है ना सर, मतलब ज्यादा पढ़ाई, नहीं तो इच्छा नहीं हो रही, डिमोटिवेशन और इवन फियर. अदर देन नो योर व्हाई. ये आंसर मुझे नहीं चाहिए. मैंने कहा ना, लाइफ में कोई ना कोई एक मोटिवेशन आपको चाहिए. हम लोग को पता होता है कि हमें कहाँ जाना है. कई बार अपने लक्ष्य से हम भटक जाते हैं, कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं. We need someone in your life. You need someone in your life who can help you in all such time when you need that motivation. कई बार हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, निराश होते हैं. यार सुबह से पढ़ रहे हैं. सबसे पहले तो हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है. और कई बार अगर हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हैं, कई बार अगर हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो एक इंसान हमें पता होना चाहिए जो हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कर सके. वो मोटिवेटिंग फोर्स आपको पता होनी चाहिए. ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ. एक स्टेज तो मेरे सामने भी ऐसी आई थी, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था. मुझे लगा था मुझे सीए छोड़ देना चाहिए, बट उस समय एक राइट मोटिवेशन मिला, एक राइट कॉन्फिडेंस मिला, जिसके बाद मैंने वापस से बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक करके फिर मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा. ये सबके साथ होता है, कोई आपके साथ नहीं होता. लेकिन पॉजिटिव एनर्जी जितनी आप रखोगे, जितना अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे, शायद उतने स्ट्रांगली आप इस सिचुएशन को फेस कर पाओगे. और you are fortunate that you are having people like Pawan sir who keep on motivating people always. I keep on listening to him. I keep on looking to people who are going for guidance to Pawan sir in all such times when they are feeling demotivated. Of course, एक मैं नागपुर की अगर बात करूं, नागपुर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाओगे ना, किसी भी हेल्प के लिए, सीए बनने के पहले या सीए बनने के बाद, नागपुर में वो सीए कितना भी सीनियर क्यों ना हो, आपको कभी भी गाइडेंस के लिए मना नहीं करेगा. तो आपके पास में इतने सारे लोग हैं, तो कभी भी लाइफ में ऐसा लगे कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है, तो आप इन लोगों का फायदा ले सकते हो. यू कैन ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दोस पीपल हु आर लिविंग अराउंड ऑल ऑफ यू. नहीं सर, आई मीन टू से कि मतलब आप हर रोज एक ही लेवल पे हार्ड वर्क, डेडिकेशन कहाँ से आता है, मुझे ये पूछना है. मतलब हर रोज उठ के करना है मुझे, ये ऐसा मोटिवेशन कहाँ से आएगा? क्योंकि मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ. जब आप काम को एंजॉय करना चालू करोगे, नंबर 1, मुझे मेरे काम को एंजॉय करना है. मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में मैं हैप्पी रहूं. मैं डेली सफिशिएंट टाइम डेडिकेट करूं लर्निंग के लिए, और साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए. जब ये चीजें मैं अपनी लाइफ में एक प्रॉपर रूटीन सेट करता हूं, ऑटोमेटिकली ये सब चीजें मेरे लिए काम करनी शुरू करती है. ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं. आपको ये सब चीजें अगर आप लाइफ में करोगे, एक सिस्टमैटिक रूटीन करोगे, सफिशिएंट टाइम डिवोट करोगे लर्निंग के लिए, अपने आप को मोटिवेट करोगे, आपको ये सब चीजें आपके लिए आपके फेवर में काम करेगी. आप क्यों आपको लग रहा है कि ये सब चीजें करने के बाद आपको कहां से लग रहा है कि आप पीछे मुड़ के देखोगे? ओके सर, थैंक यू, समझ गए. आई एम स्टिल कंफ्यूज. एग्जैक्टली मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूं. मैं चाह रहा था कि आप कुछ और. ओके. नहीं सर, मतलब मुझे ये जानना था कि मतलब अगर आपका कोई शेड्यूल है तो, और अगर आपको करना अच्छा नहीं लग रहा है, और इफ यू ट्राई, मतलब जैसे आप सीए बन गए हो और अगर एक जगह नहीं जाने का है, नहीं तो लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है, और लेकिन फिर भी आपकी भी इच्छा है, मतलब ओके, आई विल टेल यू माय, मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे जाना है लेकिन इच्छा नहीं होती, तो वो कैसे करें? कहाँ जाना है? नहीं ओके, सीए तो बनने का है, लेकिन इतनी मेहनत, ओके, मतलब रोज एक ही चीज करना, कंटिन्यूअस डेडिकेशन कहाँ से आएगा? यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे. आप रोज पढ़ाई कर करके उठ चुके हो. सुबह उठो, पढ़ो, दोपहर को पढ़ाई करो, खाना खाओ, पढ़ाई करो, शाम को पढ़ाई करो, रात को पढ़ाई करो, फ्रेंड्स नहीं, सोशल मीडिया नहीं, रिश्तेदारी नहीं, सब कुछ नहीं. आप निराश हो चुके हो सब चीजों से. यस और नो?
सर नॉट एग्जैक्टली पता है कि अपने अच्छे के लिए, हो रहे लेकिन हो, जरा एक हो रहे हो। जरा है। एक सेकंड, आप निराश हो रहे हो, धीरे धीरे आपको निराशा हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ थोड़ी 10% में थोड़ी भी। हो रही है। ये थोड़ी थोड़ी निराशा जो है ये थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, वो पढ़ाई कर रहे हो। आपने ये चीज को सोचना है कि ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर रहा हूं, और ये मुझे जिंदगी भर नहीं करना है। मुझे जिंदगी भर ये सुबह से लेकर रात तक नहीं पढ़ना है। मुझे आने वाले 5 साल तक ये मेहनत करना है, और उस 5 साल के बाद जो उसका आउटपुट मुझे मिलेगा, जो फ्यूचर में अपने लिए तैयार करूंगा, जो करियर में अपने लिए तैयार करूंगा, ये करियर, ये फ्यूचर आने वाले दिनों में मेरी ड्रीम्स पूरी करेगा, मेरे परिवार की ड्रीम्स करेगा, एक सोसाइटी में मुझे रिकॉग्निशन देगा। आप इमेजिन करो 15 साल बाद जब आप सीए बनोगे, जो रिस्पेक्ट आप इस सोसाइटी में कमांड करोगे, अपने आप को जो एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर में आप देखोगे, जस्ट विजुअलाइज करो उस ड्रीम के बारे में। अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये पढ़ाई कर सकते हो। आपको जिंदगी भर ये मेहनत नहीं करनी। आप एंजॉय क्यों नहीं करते अपनी पढ़ाई को? आप ये सोचिए कि मैं पढ़ाई को जो पढ़ रहा हूं, इससे मैं कितनी सारी नई नई चीजें सीख रहा हूं। जब तक आप इससे बाहर नहीं आओगे कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ रहा हूं, ये नेगेटिव चीजें मत करिए। अपने आप पे एहसान मत करिए। आप जो कर रहे हो वो खुद के फ्यूचर के लिए कर रहे हो। आप मेहनत कर रहे हो तो खुद के फ्यूचर के लिए कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो तो खुद के फ्यूचर के लिए कर रहे हो। और ये 5 साल बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपका भविष्य बनाने जा रहा है, आपका करियर बनाने जा रहा है। इसके लिए जब आप ड्रीम करोगे, उस ड्रीम को अपनी आंखों के सामने रखोगे, अपने आप को 15 साल बाद, 20 साल बाद विजुअलाइज करोगे, अपनी फैमिली की ड्रीम्स को पूरा होते देखोगे, तो शायद ये सिचुएशन इतनी टफ नहीं होगी जितनी टफ शायद आज है। नहीं, in fact, Sandeep sir, I have observed in this generation, I must not say this generation क्योंकि मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ इन लोगों से, लेकिन there is still a lot of gap in the mindset. ये ना क्विक ग्रेटिफिकेशन वाली जनरेशन है। इन लोगों को बिना मेहनत किए सब कुछ चाहिए। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, एफर्ट्स उतने बड़े नहीं हैं। सो ये तो कभी नहीं होगा, एंड इसीलिए फिर निराशा होती है, डिप्रेशन होता है, एंड व्हाट नॉट। इन लोगों का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, अभी मोबाइल में बटन दबाया और 10 मिनट बाद जोमेटो से डिलीवरी आ गई। एवरीथिंग इज सो क्विक। तो देयर इज द प्रॉब्लम, एफर्ट्स आर नॉट कोमेंसुरेट विद देयर ड्रीम्स। सो विभोर, यू विल हैव टू डू इट, एंड नॉट बिकॉज वी आर सेइंग। आप ओनरशिप से काम करो, आप खुद के लिए कर रहे हो ये समझ के करो, हमारे लिए थोड़ी ना कर रहे हो। ओके सर, आपने कहा कि एंजॉय योर लर्निंग, राइट? तो अगर सपोज मुझे एक सब्जेक्ट नहीं पसंद और मुझे पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, मैं 12th के बोलता, बिजनेस स्टडीज होने का है, नहीं पसंद, फिर भी पढ़ने का है, तो आप कैसे अप्रोच करोगे और आप कैसे एडवाइस करोगे मुझे कि मैं उसको कैसे अप्रोच करूं? नहीं, पहले बात मुझे बताओ आपके चॉइस कैसे एंजॉयबल बनाओ? मैं समझ गया, एंजॉय, मैंने आपको इसके बारे में आंसर ऑलरेडी दिया है कि कुछ चीजों के बारे में मैं एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। आपको उस सब्जेक्ट से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आपको इसलिए उससे डर लग रहा है। आप एक बार उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश तो करो, आप उस सब्जेक्ट को जानने की तो कोशिश करो, इंफॉर्मेशन तो लेने की कोशिश करो। जब आप इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी एंजाइटी लेवल नीचे जाने लगती है। ये फैक्ट है। आपको बताऊं, मैं जब पढ़ता था तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे लिए सबसे बेकार सब्जेक्ट था। आई यूज्ड टू हेट इट। और सीए बनने के बाद 2007 से लेकर 2012 तक मैं आईटी का फैकल्टी था। इट्स अ सिंपल एग्जांपल कि हाउ टू डील विद इट। आईटी मेरे लिए सबसे बेकार सब्जेक्ट था। आई यूज्ड टू हेट इट। और लेकिन आज मैं 2007 से लेकर 2012 तक उसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा था। तो एंजाइटी कम करने का अभी भी पढ़ाते हो एनएडीटी में आप? अभी भी पढ़ाता हूं। तो ये कोई तरीका, ये नहीं होती बात कि मुझे उस सब्जेक्ट को पसंद नहीं है। पसंद क्यों नहीं है ये तो हम जाने, शायद उस सब्जेक्ट को हम जानते नहीं, इसलिए हम डर लग रहे हैं, हमें एंजाइटी है। उस एंजाइटी को कम करने के लिए हमें उस इंफॉर्मेशन को लेना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं अपनी स्लाइड पे इस बारे में आपकी बात कर चुका हूं। तो प्लीज कम आउट ऑफ इट, एंजॉय योर स्टडीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल डियर। हमने अभी तक अपने डर से जीत हासिल नहीं की है। जिस दिन अपने डर को हम काबू पा लेंगे, जिस दिन अपने डर पे जीत पा लेंगे, शायद सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट नहीं रहेगी। यू नीड मोटिवेशन, यू नीड कॉन्फिडेंस। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहो। आप देखो अपने आप सिचुएशन कैसी चेंज होनी शुरू हो जाती है। ओके सर, थैंक यू। Any more questions? Anybody?
Yes, sir. Yes, Ayan. Hello. First of all, good morning, good evening, sir. I गुड think दो इवनिंग। लोग पूछ रहे हैं एक साथ, तो अयान पहले You आप are, पूछ लीजिए। yes, sir. Sir, you are able to hear me? यस यस यस। Sir, I want to just means share my problem with you that after listening to peoples like you, I get means pretty motivated and I start means studying hard, but I'm unable. I start studying hard. But I am unable to maintain a consistency in that. Again, I am coming back in my daily routine only. That consistency I am unable to maintain. ये बहुत सारे लोगों Now के साथ you, प्रॉब्लम है। यस, ये आपके, हाँ बोलिए बोलिए, आयान बोलिए। सर जैसे अभी आपने बता मतलब जैसे जो भी आपने सर मतलब गाइडेंस दिया ना करियर के बारे में, तो आई गेट मतलब मोटिवेटेड हो गया मैं बहुत सर। मतलब हर बार यही हो जाता है ना। देन आई स्टार्ट स्टडिंग हार्ड, ओके, बट सर वो मतलब पूरा टिकता नहीं है वो। फिर वापस वाली डेली के जो लाइफस्टाइल है ना सर, कि मन नहीं लगता बाद में, मतलब कम ही पढ़ाई होती, वैसी हो जाता है। ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम? यानी आपके साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो मैं सिंपल आपको एडवाइस दूंगा, पवन सर आपको लिंक दे देंगे, जब जब आपको लगे कि वापस से गाड़ी पीछे जा रही है, वापस से वीडियो देख लेना, फिर मोटिवेट हो जाना। वेल, जस्ट किडिंग। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कभी हमारे साथ भी हुआ है। प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं आज मोटिवेट हो गया कि नहीं सर, मैं कल से बिल्कुल आने वाले 5 साल तक बहुत मेहनत करूंगा, बहुत जल्दी मैं सीए बन जाऊंगा, सीएस बन जाऊंगा, और कल से मैं 15 घंटे पढ़ाई करूंगा। मैंने कुछ ऐसे प्लान्स बना लिए जो शायद रियलिस्टिक नहीं थे। होता क्या है, अगर मैं 15 घंटे का प्लान करूं और 15 घंटे की पढ़ाई करूं तो उसका मोटिवेशन मुझे मिलता है। लेकिन 15 घंटे का प्लान करूं और 14 या 13 घंटे की पढ़ाई करूं तो लगता है यार आज टारगेट पूरा नहीं हुआ। दूसरे दिन वापस 10 घंटे में आता हूं, 9 में आता हूं, 8 में आता हूं, धीरे धीरे मेरा टारगेट नीचे होता चले जाता है और धीरे धीरे मैं डीमोटिवेट होता चले जाता हूं। इसका मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि आप प्लान्स बनाइए, लेकिन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट भी प्रॉपर तरीके से करिए। और इसीलिए जरूरी है कि मैं रियलिस्टिक प्लान बनाऊं। हम मोटिवेट होने के बाद कई बार अनरियलिस्टिक प्लान बना देते हैं। बहुत ज्यादा मोटिवेशन अच्छी बात है, आप मोटिवेटेड हो गए, लेकिन मोटिवेट होने के बाद थोड़ा सा जमीन पे रहते हुए, फ्यूचर को एनालाइज करते हुए जितना जरूरी है उतना प्लान करिए। मैंने एक बार एक रैंक होल्डर को सुना था कि जब मैं क्लासेस के साथ डेली 2 घंटा पढ़ता था, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, रैंक होल्डर की बात कर रहा हूं। इसका कहना था कि मैं जब क्लास करता था उसके डेली 2 घंटा मैं तरीके से डिवोट करता था। 2 घंटा मींस इफेक्टिव 2 घंटा। मुझे कभी अपनी पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं गई। और अयान, सबसे बड़ी बात है कि जो एफर्ट्स मैं ले रहा हूं, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे मालूम है मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं मेहनत बहुत करता हूं, मैं एफर्ट्स बहुत लेता हूं, और जब भी मैं एफर्ट्स और मेहनत बहुत ज्यादा करता हूं तभी मुझे ये सर्टिफिकेट मिलता है, तभी मुझे डिग्री मिलती है। और ये डिग्री की अहमियत भी इसीलिए है क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। वरना बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज है ना मार्केट में अवेलेबल, बहुत सारे शॉर्टकट कोर्सेज अवेलेबल है ना मार्केट में। उसके बावजूद भी मैं इस प्रोफेशनल कोर्स में क्यों आया, मैंने क्यों सीए या सीएस बनने के बारे में सोचा, उसमें और उसमें फर्क क्या है? अगर उतना ही शॉर्टकट लेके यहाँ सीए या सीएस में बन जाता तो शायद मेरी रिकॉग्निशन, मेरी वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी उनकी है। आज मैं एक अलग रिस्पेक्ट कमांड करता हूं, एक अलग सोसाइटी में मेरी इमेज है। उसका कारण क्या है? वो मेहनत है, जो मेहनत मैं करके यहां तक पहुंचा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से मैं भाग नहीं सकता। और ये मेहनत कितने दिन करना, और मेहनत करने का मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, इन सब के बारे में मुझे सोचना जरूरी है। तो प्लान्स बनाओ, रियलिस्टिक प्लान बनाओ और फोकस्ड रहो। रियलिस्टिक प्लान बना के जब आप उसे अचीव करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपको जो मोटिवेशन मिलता है, वो मोटिवेशन आपको आने वाले दिनों में मोटिवेट करता रहेगा और आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू सर। अभी तक के 100 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। आई थिंक वी कैन टेक अप लास्ट वन क्वेश्चन। Sir, Yes. Yes. Good Good evening, sir. Firstly, I want to thank you so much, sir. It was really great listening to you.
Yes, sir, I want to ask that. So you said a good approach is must for our like perfect future. A good approach is must, right? So, but I wanna ask that how do we know that we have a good approach? मतलब सर हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हम सच में सही अप्रोच है हमारा, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? See, Harshada, we have fantastic teachers, and these teachers are actual teachers who can help us in understanding whether approach is correct or not. We have teachers, we have guide, and सबसे important है, I can self-analyze whether my approach, whether my strategy is correct or not. उसका आउटपुट मुझे मिल रहा है कि नहीं, क्या मैं चीजें जो पढ़ रही हूँ वो समझ पा रही हूँ कि नहीं, क्या मैं जब टेस्ट सीरीज दे रही हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे मेरे हिसाब से मिल रहा है कि नहीं. मैं एग्जामिनेशन तक वेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं जब पढ़ रहा हूँ मैं खुद एनालाइज कर सकता हूँ कि क्या मेरे एफर्ट्स और मेरी स्ट्रैटेजी करेक्ट है या नहीं. और अगर कभी गलती से मुझे कोई अपनी स्ट्रैटेजी पे शक है या मुझे लग रहा है कि मैं एनालाइज नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे टीचर्स हैं, मेरे गाइड हैं जो मुझे गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं मेरे एफर्ट्स के बारे में, डायरेक्शन के बारे में. टेक देयर हेल्प. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू अबाउट दैट. आपको कुछ स्पेसिफिक, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहो तो आई विल बी एबल टू आंसर इट मोर बेटर. मैंने आपको आंसर तो किया, लेकिन आपको कोशिश कर सकता हूँ और बेटर आंसर करने की, अगर आप कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ अगर आप मुझे बता दो. No, sir, not a specific experience, but I just wanted it to be clear that such में I should be on the right path here onwards. That's हमें why. डर होता है, And sir, हमें ऐसा I लगता है appreciate कि my teachers; they are always supportive that way. हमें एक डर होता है, हमें लगता है कि भाई पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है. हमें हमेशा अपने अंदर ये डर होता है कहीं इसका रिजल्ट नेगेटिव तो नहीं आएगा. ये डर, ये फियर है, इसी को हमें कोप अप करना है. ये आपने जो कहा ये सब लोगों के साथ होता है कि जो स्ट्रेटजी मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ वो सही होगा कि नहीं, क्या मैं जिस किताब से पढ़ रहा हूँ वो सही होगा कि नहीं, क्या मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वो सही होगा कि नहीं. ये सबके सामने ऐसे कई सारे डर हैं. इन डर से ही तो हमें निकलना है, और इन डर से निकलने के लिए हमें कोई ना कोई गाइड चाहिए. और आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका बेस्ट गाइड जो हो सकता है वो आपके टीचर्स हो सकते हैं. Okay, sir. Thank you. इट्स बीन रियली अमेजिंग संदीप सर, आपने इतने पेशेंटली लास्ट 40 मिनट से इतने सारे आंसर्स दिए स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भी आर्टिकल्स पूछते होंगे ऑफिस में, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे गाइडेंस लेते हैं, तो कभी कभार पेशेंस भी लूज हो जाता है कि यार यही बात बार बार क्यों पूछ रहे हैं, अपना काम क्यों नहीं करते, पढ़ाई पे ध्यान दो सब ठीक हो जाएगा. लेकिन आपने बहुत पेशेंटली आंसर दिया, एंड it was a real privilege to have you for this webinar, and I appreciate your presence, and I really appreciate all the students जो कि अपने टफ शेड्यूल में भी यहाँ पर आए, एंड आउट ऑफ कंफर्ट जोन वीकेंड पे आप एक लर्निंग वाले वेबिनार में, ग्रोथ ओरिएंटेड वेबिनार को अटेंड किए. लास्ट मंथ श्रुति जोशी जो कि मेरी फ्रेंड है मुंबई से, वो आई थी, एंड आप लोगों ने वो वाला वेबिनार भी आप में से कई लोगों ने अटेंड किया था. This time we have our own CA Sandeep Jotwani sir from Nagpur. So it's been amazing, Sandeep sir. I hope you will come for another session with these students. जब इन लोगों का डर थोड़ा और बढ़ जाए, कंफर्ट जोन में ज़्यादा आ जाए, तो एक और बार पुश लगेगा एग्जाम के पहले. So I hope you will be there. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you all the students for joining and for patient listening. Thank you CAPS for giving me this wonderful opportunity to interact with this future professionals. Thank you. I'm always available as a part of CAPS. I'm being a CAPS student. I'm always available for CAPS anytime, whenever required. Thank you, sir. In fact, for articleship, I always recommend students to first go and take guidance from Sandeep sir, and then join articleship wherever they want to join. क्योंकि वो बहुत अच्छे गाइड अवेलेबल है CA की फील्ड में. He is always there, ready to help, in spite of his hectic schedule. So thank you so much, Sandeep sir. Thank you all the students. Overall, we had 175 plus students for most of the time, and it's been a privilege. Thank you, everybody. See you all next time. Bye bye. Thank you, sir. Goodbye, sir. Thank you, sir. Really, thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir.